Assalamu alaikum and good morning. And everybody who is saying Assalam. Today we are going to conclude the topic we started, that is 7 C's of effective communication. So we are doing it today, and 4 C's we did yesterday, and I told you those. Like I don't think so. Like anybody has missed the class for yesterday. And another thing is that whenever you are going to ask me for the link to send you for the recorded classes, you have to talk to management. They would tell you, right? And they would guide you, or CRGR may contact them so that they can also get an idea how to guide the students if they are going to miss a class, and how would they be having the recording, right? So we started this topic, and today, inshallah, after the class, it would give me little time so that I would work on the notes, then I would send you. And notes, I have tried my best to put everything into the notes so that you're not supposed to read any other book for particularly for this topic for 7 C's, right? Because in all the books, wherever it is written, it is actually copied from the original book, and it is little bit elaborated. And most of the time, the examples they have used in their books is taken from the original book. So you will find everything in this in these slides, and if you prepare this and your one topic, that would be completely like ready for the answers. And when you are done with this topic, I would say again that you are going to be taking many questions in 1000 BC questions in chapter number 3, and from CA book in chapter number 3, just you read all the questions and see the answers. If you are able to do that, you manage it, your this topic is perfectly ready, right? And the next week, inshallah, we are going to be starting how to write letters. I would guide you onto that. And very important thing before, because you know why I wait for students, like because they are joining it, so I think that nobody is going to miss the words. So I wait and I make start talking to you in the beginning of the class. So you are doing what in the next week when you would be sitting for my class, please keep your copy and pen with you. You're writing down something. The first step would be all sort of introduction I will give you, and the next 2 days you are working with me. You will literally write letters with me. You will write things with me. You will do it. Obviously I cannot see, but obviously I would count on you. I will like trust you that you are understanding me, right? So we just start this topic of 7 C's today, and I told you that 7 C's are the principles of effective communication. And some of the students and some of the people, they don't have complete or clear idea about all these 7 C's. You know what they think? They think it's not possible to achieve all these like C's, 7 C's at a time, because they think if I'm going to making my message complete, it is going to be very long. How can I make it concise? तो उनको लगता है कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता. It is possible. वो कैसे? When you are given or complete message, there is nothing extra over there, there is nothing irrelevant over there, तो concise भी हो गया. ठीक है ना? अब अगर मुझे एक टास्क दिया गया है रिपोर्ट लिखने का, ठीक है, मैंने इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट लिखनी है, तो क्या ख्याल है आपका, मैं 2 लाइनों में लिखूंगी? पूरी रिपोर्ट लिखूंगी ना? तो लेकिन उसका हर पार्ट जो है कंप्लीट भी होगा और कंसाइज भी होगा. मैं उसको प्रिसाइज वर्ड्स में उसको बयान करूंगी. देन इट वुड डेफिनेटली बी करेक्ट. स्पेलिंग, स्टैटिस्टिक, डेटा उसके अंदर हर चीज करेक्ट है. फिर उसके अलावा वो क्लियर भी होगा. मैंने लैंग्वेज ऐसी यूज की है विच इज फेमिलियर टू यू, यू अंडरस्टैंड. मैंने कोई जार्गन यूज नहीं किया, कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जो आपको नहीं समझ आए, तो मेरा मैसेज जो है वो क्लियर भी हो गया. और कल हमने जो कंप्लीट पढ़ा था, करेक्ट पढ़ा था, कंसाइज पढ़ा था और क्लियर पढ़ा था. आज हम 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये इनमें सबसे ज्यादा कंसिडरेशन एंड कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा इस पे सवाल आते हैं, तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ. इसको ध्यान से आप सुनेंगे. अभी स्लाइड्स पे हम चलते जा रहे हैं. आपको कल कहा था कि आइडियाज अगर आपके दिमाग में है, ये स्लाइड
मैं अभी तेजी से गुजारूंगी, उन बच्चों के को प्लीज बता दो जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की, क्योंकि जो मैंने कल स्लाइड्स पढ़ा रही हैं उनको मैं क्विकली सिर्फ गो थ्रू करती हूँ, और जो मैंने आज पढ़ाना है उसके ऊपर मैं टाइम जो है लगाऊंगी। तो कल मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि इफ यू हैव ब्रिलियंट आइडियाज, यू कैन नॉट pass it on to others unless you have good communication skills। तो तुम कैसे लोगों को बताओगे जब तक कि तुम्हें कहनी नहीं आएगी। एक मिसाल तुम्हें मैं देती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल तुम्हें लगेगी। अब शायर जो है वो क्या करता है, आपने कभी नोट की बात? शायरी इज ऑल कंसाइज बट इट्स वेरी कॉन्क्रीट, यानी सॉलिड बात होती है। छोटी सी बात में आप कहते हैं कि सारी दुनिया की उसने बातें भर दी। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देने लगी हूँ कंसाइज और कॉन्क्रीट के ऊपर। कॉन्क्रीट आपको बड़ी समझ आएगी ध्यान से। जो कॉन्क्रीट मैसेजेस होते हैं उसमें, ये मैं आपको यहाँ पे अभी लेके जाती हूँ, आपके मैसेजेस कंसाइज भी हैं और कॉन्क्रीट भी हैं। ये हमने 7 सीज मैंने आपको स्लाइड यहाँ पे दिखाई। हमने इसमें एक मिसाल मैं देने लगी हूँ कि गालिब और मोमन पोइट हैं। आप में से कुछ लोगों को जरूर पोइट्री का शौक होगा। अगर आपने कहीं आपके टीचर्स ने आपको पास ऑन किया ये शौक, या पेरेंट्स की तरफ से आया है, तो सम हाउ यू आर इंटरेस्टेड। तो मोमिन ने एक छोटा सा, उसका एक मिसरा है, वो था कि तुम मेरे पास होते हो गोया, या शेर है पूरा ये, यस, जब कोई दूसरा नहीं होता। इसमें दुनिया जहान की उसने, आप समझ ले कि कहानी भर दी उसने, एक पूरी कहानी उसने भर दी इतने से लफ्जों में कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब के बारे में कहा जाता है, पता नहीं हिस्ट्री ही बताती है कि गालिब ने कहा कि तुम पूरा दीवान ले लो मेरे से, दीवानी गालिब, और ये मिसरा मेरे नाम कर दो, या शेर जो है मेरे नाम कर दो। तो आप समझ सकते हैं कि पोइटिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें भी कितनी गहराई है। अब ये तो नहीं होगा आप कहेंगे हम तो बिजनेस कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, डू यू थिंक वी कैन वर्क ऑन दिस कि मैं शेर सुनाना शुरू कर दूं अपनी कॉलीग्स को, अपने जूनियर्स को? ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ एक लैंग्वेज की एक्सपर्टीज की मिसाल दे रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो कितने एक्सपर्ट होते हैं लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब जैसे एक और मेरे जहन में एक वक्त आया, जो गजल भी एक है। आप लोग कहेंगे कि टीचर जो है आज हमें गजलें सुना रहे हैं, कि वो जो है जिसमें वो कहता है कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अब ये अगर आप ले लेंगे तो सादा सा है ना, ये हर एक को समझ आ जाएगा। गालिब की भी मुझे समझ आती है। आप में से कुछ लोग गालिब, फैज, जैसे आई एम वेरी फैन ऑफ फैज अहमद, फैज, गालिब, इकबाल। इकबाल की पोइट्री तो खैर समझना बहुत आसान काम नहीं है, गालिब को भी समझना आसान नहीं है। तो बताने लगी हूँ कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस होती हैं, सिर्फ बातें नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आपको और भी बहुत सी एग्जांपल्स दूंगी कि कहाँ आप मैसेज को मुकम्मल भी दे देंगे, छोटा भी होगा और बात भी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको पोइट्री से एग्जाम्पल दी है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद है जी, यहाँ पे मैं ये बताने लगी थी, फ्रांसिस जे बर्जन उस पर्सन का नाम है जिसने 7 सीज का कॉन्सेप्ट दिया था, बस इतना ही आपको याद रखना। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था कि इतनी ईमेल्स करते हो, मीटिंग्स को फैसिलिटेट करते हो, रिपोर्ट्स लिखते हो, लोगों से बात करते हो, डिस्कशन करते हो, तो इन सारों में तुम क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। अगर तुम फालतू बात करो, क्लियर बात ना करो, इनकम्प्लीट बात छोड़ो, तो लोग तुम्हें तुमसे अब मजीद बात नहीं करेंगे। दे वोंट अंडरस्टैंड यू, दे आर नॉट हैप्पी विद यू, राइट। तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ वो पर्सन को ज्यादा अच्छा समझा जाता है जो कि बात को थोड़े लफ्जों में बहुत क्लियरली समझा देता है। तो इसमें आपकी हेल्प कौन करता है? 7 सीज। आपको पता भी नहीं होता, आप में से कितने लोग प्रैक्टिस करते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। दे आर राइटिंग सो गुड, दे आर स्पीकिंग सो गुड, राइट। तो हमें इसकी, और आपने कभी नोटिस की एक और बात, आप देखते हैं टीवी पे कितनी एड्स आती हैं, ठीक है, कमर्शियल्स होते हैं। आपको बाजुकात कितनी जबरदस्त कमर्शियल्स होते हैं कि आपको याद रह जाते हैं। आप कहते हैं वाह वाह क्या बात कही है, ठीक है। जैसे मैं इस पे आपको मिसाल देती हूँ, सॉल 7 सीज, सॉल 7 सीज। आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है देते हैं, एक कैप्शन होता है किसी पिक्चर के नीचे, या कोई आप एक स्लोगन सा बनाते हो, वो क्या होता है? वो आपके अल्फाज होते हैं, आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक कोई एड थी, वहां पे मैं देख रही थी, लिबर्टी चौक लाहौर में है, वहां पे एक जमाने में बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे बोर्ड्स। तो मैंने किसी ब्रांड की एड थी, और उसमें उन्होंने
जहां जितने भी बोर्ड्स उनके लगे थे, मैंने ये नोटिस किया कि हर एक में ना डिफरेंट कलर के उन्होंने ब्लॉसम यूज किए हुए थे। ब्लॉसम समझते हो? फूल, जो फल लगते हैं ना जब, बहुत खूबसूरत होते हैं उनके फूल। जैसे सेब का ब्लॉसम बहुत खूबसूरत है, खुबानी का ब्लॉसम जो लगता है फूल बहुत खूबसूरत है। तो वो उन्होंने क्या किया, वो भरे भरे हुए हैं फूलों से, और वहां से कुछ फूल उड़ते हुए तस्वीर में से उसने पेंट हुआ था, और उसने कपड़े के ऊपर डाले हुए हैं, और नीचे उसने अपना जो लिखा हुआ था कैप्शन, वो पता क्या था? उसने लिखा हुआ था, हमने कुदरत से रंग चुराए। तो अब आप ये सोचिए, ये अल्फाज हैं, आप अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? यू नेवर नो आप किस कंपनी में काम करें। तो आपका ये पोइटिक स्टाइल और आपका गुड कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी क्लैरिटी, आपकी अकाउंटिंग, सारा कुछ मर्ज हो जाए तो क्या ही बात है कि आपको कितना अच्छा लिखना और बोलना आ जाएगा। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ गई? इसके बाद ये कंप्लीटनेस, ये सारे मैंने कहा था याद कर लेना इनके नाम, जरूरी है, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा आपको कि कौन सा 7C नहीं है। अच्छा, एक सवाल और होता है, नोट कर लो, कभी कभार आता है, टेक द ऑड वन आउट। कुछ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, दे डोंट गेट इट, क्या करना है? टेक द ऑड वन आउट का मतलब है कि सारी चीजें तो मैच कर रही हैं, चार मैंने जो नीचे आपको ऑप्शन दी है, चार में से तीन मैच कर रही हैं, एक ऑड है, उसको निकाल दो, उसको इसमें से बाहर कर दो। तो ऑड वन आउट का कभी कभार जैसे कंप्लीटनेस में आ जाए कि 7C's के लिहाज से टेक द ऑड वन आउट, और उसमें कोई और लिखा होगा, यही वाले 7C's हैं। कुछ बच्चों के ख्याल है कुछ किताबों में ज्यादा सीज लिखे हैं, छोड़ दे, जो एक्स्ट्रा लिखे हैं छोड़ दे, वो आप नहीं पढ़ने, आपने सिर्फ यही पढ़ने, क्योंकि आपकी ओरिजिनल बुक में यही दिए हुए। ठीक हो गया? तो आपको और जो है वो नहीं करने। इसके बाद आपको कंप्लीटनेस बताया था, मैसेज इज कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या याद रखनी है? कंप्लीट करो मैसेज को, जो क्वेश्चन तुम्हें किसी इंक्वायरी में आए हैं वो जवाब दो, और जो क्वेश्चन बाद में उसके दिमाग में आ सकते हैं वो भी जवाब दे दो। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था 5Ws याद करने, इसके हवाले से ये आपको याद रखना है। अच्छा, आज आपको जब मैं नोट्स भेज दूंगी ना, तो नोट्स जब खत्म हो जाएंगे, आप देखिएगा उसका लास्ट पेज होगा, तो वहां पर मैं उसकी समरी एक छोटी सी बनाकर आपको भेज दूंगी, प्रोमिनेंट लफ्ज लिख के, ताकि आपको पता चले कि असल में इस सी के अंदर क्या चीज पाई जाती है। ठीक है? तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना, आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी मैं काम कर ही रही थी, तो अभी क्योंकि आपका टाइम काम बहुत करना मुझे पड़ता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। द रीजन इज दैट कि आपकी एक अगर कोई रिकमेंडेड एक बुक होती आपके पास, और आपके फिर आपके एग्जामिनर के पास भी होती, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन आपके पास वो बुक नहीं है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको मैक्सिमम दूं वो चीजें जो कि एक एग्जामिनर सोच भी सकता है, या वो वहां तक पहुंच भी सकता है। ठीक है? तो इसलिए आपको मैं गाइड करती जाती हूँ। अभी तक लोग मुझसे सवाल पूछ रहे कौन सी किताब, क्या राइटर का नाम। मैंने कल बहुत, मेरी मैं थैंकफुल हूँ, मेरे साथ CR GR मेरी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, वो लोगों को बार बार गाइड कर रहे हैं। आपको मैंने बता दिया है, जो किताब इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, बार बार बता रही हूँ, ये वही कंटेंट है उसके अंदर जो मैंने कैप्लन के नाम से PDF आपको भेजी थी। आप उसको खोल के थोड़ा थोड़ा देख लो। जो आपको मैंने CA की बुक भेजी थी, आपकी मर्जी है उसको पढ़ना चाहते पढ़ो, लेकिन उसमें से जितना मटेरियल चाहिए मैं नोट्स में डाल देती हूँ। ठीक है? तो आप बेफिक्र होके उस किताब में से सिर्फ आप MCQs करते जाओ, चैप्टर की हर एंड में MCQs है, और वो कर लो, और 1000 वाले MCQs भी कर डालो। उसके बाद मेरे पास जितना मटेरियल है मैं आपके साथ बाद में शेयर जरूर करूंगी। ठीक है? तो अगर आपकी जैसे फिजिकल क्लासेस है, एम्बिगुइटीज दिमागों से निकालो, जो भी चीज इस वक्त चल रही है उसका फायदा उठा लो। अगर आप किसी फिजिकल क्लासेस भी हो जाती हैं, और स्टिल आप समझते हैं कि टीचर ने तो कहा था कि मैं आपको और समझा दूंगी, या आपको मैं और नोट दे दूंगी MCQs, तो मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, आपके पास मेरा नंबर भी आ गया है ना? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपके पास नंबर है ना मेरा, तो आपके ग्रुप में भी मौजूद है, आपके ग्रुप भी रह सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, इसमें परेशान होने वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है? तो आराम से, तसल्ली से, वेट फॉर द अनाउंसमेंट, वेट फॉर द डिसीजन, जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा आपके फायदे के लिए होगा, तो आप उसके ऊपर जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है? तो परेशान मत हुआ करें। और अगर कोई आपको लिंक से रिलेटेड कोई बात होती है ना, तो आप प्लीज मैनेजमेंट से पूछा करें, बिकॉज वो आपको हुक कर सकते हैं इससे। अच्छा जी, इसके बाद है कंसाइजनेस बताई थी, शॉर्ट करना मैसेज को, टू द पॉइंट बात करना। ठीक है? और लेकिन अपनी बात में क्या है, वजन हो, ये ना हो कि आप बातें जो है वो
उसमें से निकाल दें, निकालनी नहीं है, इरेलीवेंट निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको फनी सा ये दिया था कि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ ये बताना है लोगों को कि मीटिंग नेक्स्ट ट्यूसडे हो गया, इतनी बड़ी कहानी क्यों लिख रहे हो। उसके बाद क्लैरिटी बताया था कि क्लैरिटी में आपने फेमिलियर वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है ताकि सबको समझ आए। उसके लिए आपको ये भी बताया था कि आपने सेंटेंस बहुत लंबा नहीं करना, और उसके लिए ये फेमिलियर वर्ड्स हैं, और सेंटेंस लंबा नहीं करना। और उसमें मैंने नोट्स में आपको पढ़ा दिया था कि 15 से 20 या कुछ किताबों में लिखा है 17 से 20 आपके वर्ड्स एक सेंटेंस में, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हर सेंटेंस जो है वो 17 से 20 का होगा। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन। कोई छोटा सेंटेंस होता है, ठीक है ना, उसके बाद कोई इलेबोरेटेड सेंटेंस होता है दैट्स कंटेनिंग क्लॉजेस जिसमें ज्यादा आ जाते हैं, जो जिनको ग्रामर का पता है वो अंडरस्टैंड करें मेरी बात को। आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, मेन क्लॉजेस होते हैं, या कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल बीच में करते हो, तो आप इसको कॉम्बिनेशन एक बनाते हो जिसे वैरायटी आ जाए सेंटेंसेस में। और इसके अलावा पैराग्राफ के अंदर एक थॉट रखा करो, एक से ज्यादा नहीं। करेक्टनेस हमने देखा था हर तरह से करेक्ट हो, और उसमें हमने देखा था स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन गलत ठीक होनी चाहिए, गलत ना हो। और राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करो, वो मैंने आपको कल समझा दिया था। फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो होने चाहिए। कहीं ये IMP लिखा नजर आए तो ये इंपॉर्टेंट के लिए मैंने लिखा होता है, इसलिए इसको माइंड ना कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में बता दिया था कि पेपर में आपको पूछ सकता है फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल, सबस्टैंडर्ड। फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो आपको बताया था ज्यादा ऊपर जो लिखा हुआ, देखिए आप पूरे पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे कि ये स्कॉलरली राइटिंग हो गई, या आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स हैं, या कोई एकेडमिक मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेक्टस वगैरह लिखी है उसमें होता है। और यहाँ पर कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो है वो लिटिल लेस फॉर्मल होती है, यू कैन कॉल इट लिटिल बिट इनफॉर्मल बिकॉज इट्स मोर कॉन्वर्सेशनल, इट्स लाइक यू आर टॉकिंग टू समबडी। और फिर आपको मैंने कहा था कि सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है, स्लैंग, स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपके साथ ये भी बता दिया था कि जितनी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, या wanna go या gonna do जो आप बोलते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करें। वो रैप में कर लिया करो या बातों में कर लिया करो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। फिर आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता दिए थे कि लोगों को दिखाओ और चेक कर ला लो सारा। आज का हमारा टॉपिक कंसिडरेशन। जरा प्लीज सारे लोग जो कहते हैं ना, जैसे बैठते हैं जब आप जहाज पे, तो वो कहते हैं बेल्टे, सीट बेल्ट जो है बांध लो। वैसे तो हर गाड़ियों में भी अब रिस्ट्रिक्शन हो गई है बहुत ज्यादा, अनलेस आपकी गाड़ी में डेफिनेटली आपने अगर लगानी है वो तो जैसे कि गाड़ियों में बजना शुरू हो जाती है, आवाज आना शुरू हो जाती है कि आपकी बेल्ट नहीं लगी हुई। दूसरा ये कि आप बेल्टें बांध लो। आप सारे तैयार हो गए हैं, अब हम एक नए सफर पर निकले हैं। ध्यान से हम सुनेंगे कि इस वक्त हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन से स्टेशन है। आपके पास सिर्फ 3 स्टेशन है। पहला स्टेशन आपका है कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, पहले तो ऊपर लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मींस दैट whenever you compose the message, keep always audience in your mind who will receive your message. लोगों का ख्याल करके चलो, लोगों को क्या चाहिए उनको वही दिखाओ जो उसको चाहिए, उनको वही समझाओ जो उनकी जरूरत है, उनके लेवल पे आ जाओ, अंडरस्टैंड उनको कराओ, ठीक है जी। तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। और हम जो बंदा ऐसा करता है ना, उसे कहते हैं कंसिडरेट। आप बहुत कंसिडरेट है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब आपने, मैंने ये स्लाइड आपको मिल जाएंगी, जरा प्लीज ऊपर येलो कलर वाला पार्ट पढ़िए। आपको ये इस पे रट्टा लगा लेना। कंसिडरेशन के जो लफ्ज आपको पेपर में आ सकते हैं, एक एम्पथी पूछेगा। एम्पथी है किसी को फील करना, ये सिंपथी नहीं है। सिंपथी में आप किसी को बेचारा कहकर उसकी हेल्प करते हैं, आप अपर हैंड रहते हैं, आप पावर में ऊपर होते हैं, बेचारा दूसरा जो है वो नीचे ही होता है, आपसे स्टेटस में नीचे होता है, तो आप इसको सिंपथी शो करते हैं। एम्पथी में आप किसी को फील करते हैं, उसके लेवल पे आ जाते हैं। ये एम्पथी आप पॉजिटिव चीजों में भी कर सकते हो और नेगेटिव में भी। नेगेटिव से मुराद ये है कि दुख है किसी को, उसको फील करो। और अगर कोई बहुत खुश है तो उसको भी फील करो कि वो क्यों जंप लगा रहा है। तो इसको कहते हैं एम्पथाइज करना, एम्पथी, ठीक है। और ये मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको लिसनिंग में भी बताया था, एम्पैथिक लिसनिंग, एम्फैटिक लिसनिंग, जो भी लिखेगा स्पेलिंग, उसका मतलब है किसी को फील करना। यू एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, अब आप एक चीज और सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यू एटीट्यूड वर्सेस वी एटीट्यूड। यू एटीट्यूड का मतलब है
मैं आपको इंपॉर्टेंस दूं। आप मेरी ऑडियंस हैं, आप मेरे रिसीवर हैं, आप मेरे कस्टमर हैं, मेरे क्लाइंट हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंस देनी है। क्या इंपॉर्टेंस देनी है? कि मैं आपको फोकस करके दे रही हूँ मैसेज, ताकि आप जो है उसको अच्छा फील करें। फिर एक लफ्ज आएगा, स्लैशेस लगेंगी हैं, ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच। आपकी जो दोनों किताबें हैं रिकमेंडेड फॉरेन किताबें, उनमें एक ने यू एटीट्यूड का वर्ड इस्तेमाल किया जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा यही सवाल में आता है। कहीं कहीं अगर आपको कोई ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच कह ले, ऑडियंस सेंटर्ड का मतलब है ऑडियंस फोकस्ड, यानी ऑडियंस को, ऑडियंस आपके कौन है जो आपका मैसेज लेते हैं, कोई भी शक्ल हो उनकी, दे आर रिसीविंग योर मैसेज। आपने उसकी अप्रोच इस्तेमाल करनी है ताकि आप उनको इंपॉर्टेंस दें। यहाँ पे जो स्लाइड मैंने पिक्चर सेलेक्ट की उसमें लिखा हुआ है, टू क्रिएट योर एटीट्यूड टॉक अबाउट द रीडर, डोंट डिस्कस फीलिंग एक्सेप्ट टू ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, आप कोई और ज्यादा लंबी बात ना करें। इन पॉजिटिव सिचुएशंस यूज यू मोर देन आई, यूज वी व्हेन इंक्लूड्स रीडर। अब इस बात को समझ लें, अगर पॉजिटिव बात है तो यू का इस्तेमाल करो कि यू विल बी हैप्पी टू लर्न कैसा होगा। और अगर मैं और आप दोनों इसमें आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने कहा अपने क्लाइंट को कि यू विजिट माय ऑफिस, ठीक है, वी विल डिस्कस टुमारो, तो वी आ गया, मैं और तुम दोनों शामिल हो गए, यहाँ पे ये बात हो गई। लेकिन लास्ट लिखा है, याद रखेंगे इस बात को, अवॉइड यू इन द नेगेटिव सिचुएशंस या अवॉइड यू इन द सेंसिटिव केसेस। मैसेज सेंसिटिव है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है, आपको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाले दो आपको जो एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव केस है और नीचे वाला नेगेटिव है। देखिए क्या करना है। पहले में लिखा है कि इंस्टेड ऑफ दिस ये इस्तेमाल करो, लिखा हुआ है ना। मैं सिर्फ नीचे वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। टू हेल्प अस प्रोसेस दिस ऑर्डर, यानी मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी ऑफ द रिक्विजिशन। आप हमें जो आपकी रिक्विजिशन है, रिक्वायरमेंट है, उसकी कॉपी और भेज दें। तो आपने कहा वी मस्ट आस्क, कहा ना, टू हेल्प अस प्रोसेस, कहा ना। आप यहाँ पर वी या आई कह लो, इसका एटीट्यूड यूज कर रहे हो। वी आई एक ही बात है, यानी ज्यादा होंगे तो वी हो जाएगा, आई होगा तो आपने क्या किया है, इस्तेमाल किया है अपने आप को। अब वो कहते हैं कि ज्यादा बेहतर था राइट वाला पढ़ते हैं, सो दैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड प्रॉम्प्टली, ताकि तुम्हारा ऑर्डर जल्दी से हो जाए, प्लीज सेंड अनदर कॉपी ऑफ द रिक्विजिशन, आप हमें कॉपी भेज दें। यहाँ पर मैं अपने आप को बहुत बड़ा फील करूंगी जब मुझे ये मैसेज आएगा कि ओ मेरे ऑर्डर पे काम हो रहा है, आई मीन आई फील गुड अबाउट दैट। तो आपने यहाँ पर यू का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद दूसरी आप पॉइंट देखिए नीचे वाला, उसमें कहता है यू शुड नेवर यूज दैट टाइप ऑफ पेपर इन द कॉपी मशीन। मैंने किसी को देखा, कॉपी मशीन जो थी, कॉपी हो रही थी, फोटो कॉपी, उसके अंदर वो पेपर लगा रहा था और वो इतना घटिया पेपर लगा रहा था, और मैंने कह दिया यू शुड नेवर यूज द पेपर। अब वो बंदे कहेगा ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, ठीक है, बुरा लगेगा मुझे, तुमने एकदम से यू कहा, मेरे कानों ने सुना, इट्स वेरी ऑकवर्ड। इसके बेहतर क्या था, आप बड़े आराम से उसको भी निकाल दो, खुद को भी निकाल दो। हम इसको एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, डीपर्सनलाइज करना। आप बीच में से बंदा ही निकाल दो ताकि किसी को बुरा ही ना लगे। तो आपने कहा दैट टाइप ऑफ पेपर डजंट वर्क वेरी वेल इन द कॉपी मशीन या इन दिस कॉपी मशीन, कि आपका जो पेपर है ना ये वाला, ये इस कॉपी मशीन में अच्छा काम नहीं करता, या ये कॉपी मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करती, आप इस तरह की कोई बात कर दें। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, मे बी इतना बुरा नहीं है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसके बाद यहाँ पर जी वी एटीट्यूड यू एटीट्यूड के और एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये वाली किताब में आपके वो वाली पिछले वाले भी आपकी जो ओरिजिनल बुक से हैं, ये भी ओरिजिनल बुक से हैं। जब भी मैं ओरिजिनल बुक की बात करती हूँ, हर्टा मफी की बात करती हूँ और बबी की किताब की बात करती हूँ, वो दोनों किताबें आपके पढ़ने से, आप उसको लिए, मैं ये नहीं कहती आपको अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, आपके पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि आप दोनों किताबों के एक एक लफ्ज को पढ़ें और उसमें से मतलब निकालें और देखें कहाँ से पेपर में आएगा, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये, और फिर भी आपका शौक है पढ़ने का तो आप जरूर पढ़िए। इसके बाद है जी वी एटीट्यूड, आई एम डिलाइटेड या आई एटीट्यूड कर लिए, एक ही बात है। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल एक्सटेंड आवर्स घंटे टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट। हम आप मैं डिलाइटेड हूँ, खुश हूँ
ये अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप शॉपिंग जो है आपकी कन्वीनियंट होगी, क्योंकि हमने घंटे बढ़ा दिए। अभी आपने देखा था जैसे 5 बजे शॉप्स बंद हो रही थी, फिर आपने बहुत मुश्किल हो गया, जो लोग दफ्तर से आते थे वो कैसे शॉपिंग करें, दुकानें तो बंद हो जाती थी, तो आपने आवर्स बढ़ा दिए। और ये आपको पता है वी एटीट्यूड किसका तरीका है? आई एम सॉरी टू से, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं, हम कर देंगे, हम अगले 5 सालों में ये कर देंगे, है ना, उनका स्टाइल होता है। तो ये वाली चीज हमने हम जो है ना, ये निकाल देना है उस वक्त जबकि आप किसी को एक प्लेजेंट इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। उसके लिए यू एटीट्यूड हो गया, यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग्स विद द एक्सटेंडेड आवर्स। निकल गए हम, अब तुम आ गए बीच में, तुम खुश होंगे, आप शॉपिंग अच्छी तरह कर सकोगे क्योंकि आवर्स जो एक्सटेंड हो चुकी है। आपने रिस्पेक्ट शो की, आपका जो रीडर है इस बेनिफिट से पॉजिटिव लेगा, रिएक्शन नीचे लिखा है मैंने, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इस पे ज्यादा मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया है कि बहुत पेपर में सवाल आ जाता है यू एटीट्यूड पर। वी एटीट्यूड का नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन वी एटीट्यूड का तब करना है जब मसला बिगड़ गया हो, ठीक है, और गलती अपने ऊपर ले लेनी। अब आप देखिए, फॉर इंस्टेंस मैं आपको लिखा है नेवर यूज यू एटीट्यूड इन सेंसिटिव मैटर्स। अब आप गौर से सुनिए, यहाँ पे लिखा है यू डिड नॉट सेंड अस पेमेंट। आपको एक्यूज किया ना, आपको एक्यूज करना, बुरा भला कहा, यानी आपको इल्जाम लगा दिया, यू डिड नॉट सेंड अस पेमेंट। एक बंदा है फॉर इंस्टेंस, ये खबर पड़ता है, उसने पहले से ही लिफाफे में डाल के किसी को भेज दिया है, या आपने आपको कोरियर हो गया है चेक, तो क्या होगा, वो कहेगा सर पकड़ के बैठेगा, कहेगा कितना बदतमीज आदमी। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव में एक्यूज नहीं करना, आप कहेंगे वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट येट। तो वो कहेंगे नहीं नहीं जी आ गई है, ऑन वे है, ठीक है। तो ये आपका एक ये तरीका। दूसरा ये भी हो सकता है द पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, आप ये भी कह सकते हैं, निकाल दे अपने आप को, वी भी निकाल दिया मैंने, डी पर्सनलाइज कर दिया। और लास्ट कर दिया द पेमेंट डिड नॉट रीच अस, इसमें भी आपने ये कहा कि हम तक नहीं पहुंची, आपने इस्तेमाल तो किया बट इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, और ये बात नहीं है कि 7 C's क्या सवाल आएगा पेपर के लिए मैं याद कर लूं तो मुझे आ जाए। अपनी जिंदगी के लिए हमने अच्छा बोलना, तरीके से बोलना सीखा है। एक बंदा होता है, वो बंदा कहता है देखो तो सही, इसको तो जरा पता नहीं चलता, और कुछ लोग बड़े ही डिप्लोमेटिक होके कहते हैं हाँ आउटस्पोकन है बहुत। ये आउटस्पोकन क्या होता है, इसका मतलब है बदतमीज, दूसरे लफ्जों में, ठीक है। तो क्या होता है, वी आर सपोज टू बी वेरी केयरफुल, हम दूसरों को ये टाइटल ना देने देंगे कोई हमें बदतमीज कह दे, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू बी आउटस्पोकन। अंग्रेज ने तो लफ्ज बड़ा अच्छा बना दिया बट स्टिल इट्स नॉट गुड, ठीक है, हम देसी लोग हैं, हमें क्या लगे अंग्रेजी से, ठीक है ना, लेकिन हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद कॉन्क्रीटनेस है, ये अभी मैं पढ़ाती हूँ, परेशान ना हो, कंसिडरेशन नोट्स पे आते हैं, वहां पे आपको सारा समझाती हूँ क्या क्या पढ़ना आपने। कॉन्क्रीटनेस मीन सॉलिड, अच्छा बोरी पकड़ो बजरी भर दो, सॉलिड, बिल्कुल ऐसे ही सॉलिड बातें किया करो जहां जरूरत है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने कुदरत से रंग चुराए, क्या बात है, आपको क्या हुआ, आपने इमेजिन किया कुदरत, नेचर, पहाड़ों में चले गए आप, ठीक है, सफर कराएं आप जाके ज़हनी तौर पर, और जाकर आपने फूलों को भी फील कर लिया, महसूस कर लिया, एक शेर पढ़ा आपने, वाह वाह की। आपको मैंने लिसनिंग में सुनाया था ना, जब हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं ना, असल में ये एक मैं आपको इसकी फिलॉसफी बताती हूँ, साइकोलॉजी। जब हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं ना तो हम इमेजिन कर रहे होते हैं, पता है आपको इस चीज का, हमारा ब्रेन जो है वो हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है, हम सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई हमें वो म्यूजिक अच्छा लगता है। और मैं अब म्यूजिक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ, और जिनको कुछ और चीज अच्छी लगती है दे फील लाइक दैट। और इसके अलावा आपको पता है कि हम सारे मुसलमान, हमें कितना अच्छा ये भी फील होता है, और जब हम कोई अच्छी किसी की तिलावत होती है, ठीक है, हम उसको ऐसे सुनते हैं लगता है कि हमारी अंदर उतर रही है, तो एक फील है। अजान कोई अच्छी देता है, ठीक है, तो आपको फील आती है। अजान के हवाले से मेरे ज़हन में एक बात आई, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। एक साहब गए हुए थे, हमारी फैमिली में है, तो ही वॉज देयर इन राइट नाउ एट दैट मोमेंट, टर्की में थे वो बैठे, ठीक है। तो टर्की से उन्होंने ना मैसेज किया, और उन्होंने वहां से आवाज हमें सुनाई। टर्की में एक जगह ऐसी है जहाँ पे, वहाँ टर्की इज वर्थ सीइंग प्लेस है, आई बिलीव के इस्तांबुल में थे वो, आई बिलीव, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो वहां पर कुछ एक इलाके में करीब करीब ना 2 मसाजिद है,
और उनके जो मस्जिद में इमाम, अब मुझे नहीं पता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बात ठीक है कि नहीं, लेकिन मैंने उनकी बात आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इतनी क्लोज दो मस्जिदें थी कि अगर एक बंदा अजान देता है तो दूसरी आवाज मिंगल हो जाती, मिक्स हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फैसला किया कि दोनों मिलके अजान देते थे। एक स्पीकर से एक लफ्ज बोलता था, यानी एक पार्ट बोलता था, जैसे किसी ने कह दिया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो दूसरे ने वो कह दिया दोबारा, दो दफा उन्होंने नहीं किया। तो एक अजान से मैं बताने लगी बात। तो समटाइम्स अजान इज लाइक यू फील सो गुड अबाउट दैट। तो मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज व्हाट, आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, आप इसको पॉजिटिव ले जाए, नेगेटिव ले जाए। अब हम बातें कर रहे थे कॉन्क्रीटनेस की तरफ। तो कॉन्क्रीट में अब आपने क्या याद रखना है, टॉप पर लफ्ज तो याद कर लें, स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, कॉन्क्रीटनेस के साथ बांध दें। जहां मैसेज कॉन्क्रीट होगा उसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स का मतलब होता है एग्जैक्ट फिगर्स बताओ। अगर तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, और मुझे एक बताना है कि जी ऑफिस में नोट पैड खत्म हो गए, मैंने कहा जा रहे हो ना, तो थोड़े से जी नोट पैड चाहिए सर। इसका क्या मतलब होता है थोड़े से? आप मुझे बताएंगे कितने चाहिए, आप मुझे सही फिगर बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम में से, आप में से कुछ लोगों को होगा ना, जैसे आप मार्केट निकले हुए हैं तो पीछे अम्मा की कॉल आ जाती है, जो स्पेशली बच्चे हैं यंग, उनका मसला है, बहुत बड़ा मसला। तो अम्मा की कॉल आ जाएगी, बेटा ये लेते आना, दही लेते आना स्पेशली, या इतना जो है ये भिंडी लेते आना। अब साथ ही अगर somebody is saying कि थोड़ी सी ये चीजें लेते आना, अब ये थोड़ी सी क्या होता है, यू नेवर नो कि कितनी। तो एग्जैक्ट आपको चाहिए, क्योंकि आपको तो एबीसी नहीं पता होती, स्पेशली लड़कों को, कि जी किचन में कितनी चीजें चाहिए होती है। तो इसी तरह घर से लेकर ऑफिस तक आपको स्टेटिस्टिक्स बताने हैं, सही, ताकि आपको भी यकीन हो मैं जो खरीद रहा हूँ ठीक है, और दूसरे को भी। अब अगर आप समझें कि आप अपने रूम के लिए या अपने ऑफिस के लिए एक मैट खरीदना गए, मैटिंग लगवानी है, ठीक है, या टाइल्स आपने लगवानी है, तो क्या ख्याल है, आप एग्जैक्ट नहीं बताएंगे? कैसे आपकी टाइल्स आएंगी, कैसे अंदाजा होगा कि कितने मेजरमेंट की टाइल, वो कैसे आपको कैलकुलेट करके देगा कि कितना कमरा है, कितनी टाइल्स आपको चाहिए? तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताने। एक ये बात समझ में आ गई। उसके बाद तो नीचे लाइन लिखी है स्पेसिफिक इंस्टेड ऑफ जनरल, मैंने उसको हाईलाइट किया है। स्पेसिफिक बातें किया करो, जनरल बातें ना किया करो। जनरल मीन नॉट स्पेसिफिक। जब आप किसी को जनरल बात कर देते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस, हाँ किसी दिन मिल लेंगे, जनरल बात है। स्पेसिफिक बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बताओ किस दिन मिलेंगे और किस वक्त में आऊं, ठीक है, तुम फारिग होंगे लेकिन मैं फारिग नहीं हूं, या वाइस वर्सा। तो आपने बतानी है। इसके बाद नीचे मैंने लिखा है फिक्स इफेक्ट्स एंड फिगर्स है, और एक लफ्ज है जेनेरिक या इरेलीवेंट। जेनेरिक होते हैं सिंबॉलिकल, सिंबॉलिकल बातें लोग कर जाते हैं, सर हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। इसके बाद सर बेचारे जो है जिंदा बचने के काबिल ही नहीं रहे, ऐसा ख्याल आपने रखा है। तो आपने सिंबॉलिकल बातें नहीं करनी, सही बताएं। अगर आप होटल में मुझे ठहरा रहे हैं, जस्ट टेल मी, क्या आप मुझे वहां पे प्रोवाइड करेंगे? आप चले जाए ना हिल्स पे, तो कभी कभार बड़ी बड़ी वहां पे शेखियां मार रहे होते हैं, नहीं जी आपको 24 आवर जो है गर्म पानी मिलेगा। फिर देखिए आपके साथ हाल क्या होता है आपका, और फिर देखिए आपके साथ वो क्या करते हैं, वो कहते नहीं नहीं हमारा गीजर है ना, सुबह वो था, लकड़ी डालेंगे तो चल जाएगा। तो क्या होता है, जनरल बातें ना किया करो, टू द पॉइंट बात करो, इरेलीवेंट बातें ना किया करो, जो आज की इस वक्त की बातें वो किया करो। इसके बाद जनरल में एक एग्जांपल दी है मैंने, ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अच्छा ठीक है, समझ आ गई, बस ठीक है, सही तुमने बताया। अली उसका नाम है, फॉर इंस्टेंस कुछ भी ले लें, अली जीपीए, जीपीए आप समझते हो ना, जीपीए वाज 3.95, क्लोजर, 4 के करीब है, एंड ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, कि उसका जीपीए इतना ज्यादा है। और या जो भी कह लो, जो तुम्हें अगर नहीं भी समझ आई तो तुम मार्क्स ले लो, परसेंटेज ले लो, कि आपने कहा जी इतने हैं और वो क्लास में पहली पोजीशन पे आया है, दूसरी पे आया है, व्हाटएवर। तो आपने सही तो बताया, ठीक है जी। अच्छा, और जैसे वो एक था ना, एक होता है कि, और ये भी बात होती है कि जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो ये भी पूछ लिया करें कि इस क्लास में बच्चे कितने हैं, यू नो कि 3 ही बच्चे हो, ठीक है। तो आपने क्या है, इट्स थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। उसके बाद जनरल है, एक मिसाल और मैंने लिखी, द सेल्स इंक्रीज लास्ट ईयर, कितना एम्बिगुअस है, उसको क्लियर थोड़ा सा किया, द सेल्स इन द सेकंड क्वार्टर, ये ऑफ था वर्ड और लिखा गया, ऑफ लास्ट ईयर इंक्रीज बाय 20%। आपने कहना था कि सेल जो है
पिछले साल 20% जो है बढ़ी थी। और सेकेंड क्वार्टर का मतलब है कि दूसरे क्वार्टर में, ठीक है ना, अगर 3-3 महीनों के 4 आपके पास हिस्से हैं तो इसका मतलब है चौथे मंथ से आपकी सेल बढ़ी थी। तो ये आप इनको बताएंगे। फिर इसके अलावा आपने कॉन्क्रीटनेस में एक और चीज, जरा थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से हटने लगे हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाएं। और प्लीज मैं आपको एक और बात कहूंगी, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जो हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेते होंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बात बता दूं कि क्लासेस नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। किताबें इस तरह बोलती थोड़ी हैं, बताती थोड़ी हैं आपको, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्क्रीटनेस के लिए मैंने बताना है कि आपने पहले पूरी लाइन पढ़ लो, ऊपर वाली लिखा हुआ है चूज इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। इमेज बिल्डिंग वर्ड्स मैंने अभी आपको चूज करके भी दिखा दिए, मैंने अभी आपको शेर पढ़ के सुनाया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कुदरत से हमने रंग चुराए। इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, आपको इमेज दिमाग में आ गया, आपने सोचा। और सबसे ज्यादा एक मिसाल में जब दिया करती हूँ तो बच्चे कहते हैं प्लीज मिस ये बात ना करें और भूख लग गई है, मैं क्लास में बैठे हुए बच्चे कहते हैं। वो क्या है, आपने कभी देखा पिज्जा हट की जो एड है, पिज्जा हट की जो अगर बड़ा सा बोर्ड लगा है रास्ते पे सड़क पे जाते, उसमें आपको लोग नजर नहीं आते, आपने देखा है, सिर्फ पिज्जा ही काफी है, इतना बड़े पिज्जे की पिक्चर है और उसके अंदर से देख रहे हैं चीज टपक रहा है नीचे, ठीक है ना, और उसको देखकर आपके दिमाग में उफ, मुंह में पानी आ गया। अब जो मैं बता रही हूँ तब भी तो आ सकता है ना, आप एफएम सुन रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं जी सम्चुअस चीजी पिज्जा, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कितनी भूख भी लगी है, ऊपर से क्या बता रहे हैं मुझे। और जो जरा थोड़े से कमजोर हैं, यानी वीक होता है एक पॉइंट, आपका खाने का शौक होता है, तो वो जो कहते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल मुझे मुझे चाहिए ये। तो मैं आपको बताने लगी हूँ ये है इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। उसको हम क्या कहते हैं, अगली लाइन सुनिए, यू मे यूज फिगरेटिव लैंग्वेज। उसके लिए ये मैं क्यों लफ्ज बता रही हूँ, कहीं तुम्हारे पेपर में ये आना जाए, आप फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करेंगे। फिगरेटिव लैंग्वेज पता क्या होती है, फिगरेटिव वर्सेस लिटरल लैंग्वेज। लिटरल तो सचमुच की होती है, ठीक है ना, अगर किसी को कुछ यानी कोई चीज है तो लिटरली ऐसा ही, जैसे मैं अगर किसी को बंदा कह देता ना कि लोगों की आदत होती है बैक बाइटिंग की, एक दूसरे को बातें बताते हैं, कहते हैं उसने तुम्हें कहा था कि तुम बहुत वो जो है ना झूठ बोलता है, ये बहुत झूठा है। आप उसे पूछेंगे लिटरली उसने ऐसा कहा है, लिटरली का मतलब है सचमुच ऐसा कहा है, ठीक है ना। तो आपकी जैसे दुनिया है लिटरल वर्ल्ड है, ठीक है, फिजिकल है, सामने है। दूसरा फिगरेटिव मीन सिंबॉलिकल, अलामती, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या फर्क है, उसके लिए मैं आपको आगे 3 स्लाइड्स मैंने डाली हैं, ये किसी और टॉपिक से हैं लेकिन मैं समझाने के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है हो सकता है आपको काम आ जाए। अब आप गौर करेंगे, आपको फनी भी लगेगा, ऊपर टॉप पे जरा चेक करो क्या लिखा है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, स्लीपिंग पिल्स। पिल्स क्या होती हैं, गोलियां, नींद नींद की गोलियां, सो रही हैं पिल्स। स्लीपिंग पिल्स मीन सोती हुई गोलियां, उस देखें ऊपर नीचे बंकर में सो रही है। क्या सचमुच ऐसा है, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, उसका नाम है लेकिन लिटरली इसका मतलब नहीं कि सचमुच सो रही है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज है ये। फास्ट फूड कहते हो, दौड़ रही है, फास्ट फास्ट है ना, दौड़ रही है, तो आपने इसे फास्ट फूड कहा, ठीक है, लिटरली ऐसा नहीं है। विंडो शॉपिंग क्या होती है, आपने खरीदारी अभी नहीं करनी है, अभी सिर्फ सड़कों में जाके आपने शॉप्स देखी हैं, क्या चीजें कहाँ पड़ी हैं, तो वो विंडो शॉप कर रही है खातून लड़की, उसने कार्ट में विंडोज डाली है। रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर जो आपके अगर किसी घर में है तो आपको पता है वो एक चेयर होती है जो आगे पीछे हिलती है, ज्यादातर रिटायर्ड जब लोग हो जाते हैं स्पेशली उनकी चेयर होती है, वो वहां बैठ के अखबार पढ़ते हैं, है ना, तो रॉकिंग चेयर। तो आपने ये सारे क्या हैं, ये फिगरेटिव है। और उसके लिए एक मिसाल और मैं आपको देने लगी हूँ, जैसे हम यूज करते हैं कूल एज क्यूकम्बर, जैसे क्यूकम्बर क्या होता है जो खाते हैं हम, उसकी तरह कूल, एनक शैनक लगाई ये कूल है। और दूसरा आपको स्टॉर्म इन द टी कप, यानी तूफान आ गया, या उसकी नहीं समझ आई तो नीचे वाला देखो, कहते हैं ना इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जैसे कि बहुत ज्यादा कराची में बारिशें हो रही थी और अभी भी शायद सिलसिला खत्म नहीं हुआ, तो ये जो कराची वाले बच्चे हैं उनको समझ आ गई मेरी बात की, कितना अल्लाह ताला सब पे रहम करे, बहुत ही परेशानी हुई है पढ़ के सारा देखकर। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, आपका क्या हाल है, कैट्स एंड डॉग्स की बारिश हो रही है। तो ये सारी क्या मिसाली हैं, इलामती हैं, हमें कभी जरूरत पड़ जाती है इनकी, तो मैं आपको इसका बताऊंगी।
और ये मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना। लिटरल लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं होते, उसमें जो कहा जाता है उसका वही मतलब होता है। यानी मुहावरे जितने इस्तेमाल करते हैं उसका ये मतलब थोड़ी है कि वही हो। जैसे मैंने एक मिसाल दी है, गौर से सुनिएगा। लेफ्ट साइड पे फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल, ये आपके काम आ सकती है, इससे आपको समझ आ जाएगी। पहली एग्जांपल, अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट कवर्ड द स्लीपिंग फॉरेस्ट। ब्लैंकेट ऑफ वाइट कवर्ड द स्लीपिंग फॉरेस्ट। कहना क्या चाह रहे हो? देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्नो इन द क्वाइट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट खामोश था और उस पर इतनी बर्फ पड़ी हुई थी। फॉरेस्ट इसलिए खामोश था कि चरिंद परिंद सारे के सारे बेचारे दबे बैठे होंगे। कौन आवाजें निकाल रहा है? कोई भी नहीं। तो फॉरेस्ट क्वाइट है और उस पर बहुत बर्फ है। तो आपने कभी कभार आपको फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। फिगर्स ऑफ स्पीच इसे कहते हैं, इसे नोट कर लो। मैं वैसे लिख कर भी दे दूंगी आपको यहाँ पर। इसे फिगर्स ऑफ स्पीच कहती हैं। ये इस्तेमाल करते हो, उसमें पता क्या क्या है आपकी? सिमिली, तशबीहात, मेटाफर, इस्तारे इस्तेमाल करते हो, और भी बहुत कुछ करते हो। तो ये मैंने आपको दो मिसालें दी जिससे आप पहले से थोड़े से फेमिलियर होंगे। और जो मेटाफर होता है, जैसे कि किसी को कुछ कह देना, जैसे मिसाल के तौर पर सिमिली तो कहती है ना, जैसे कोई ब्रेव हो तो आप कहते हैं माई आवर सोल्जर्स आर लाइक लॉइंस, कि हमारे सोल्जर्स जो है लॉइन की तरह है। आपने ये कह दिया। लेकिन अगर आप ये कहेंगे आवर सोल्जर्स आर लॉइंस, कि हमारे सोल्जर्स ही लॉइंस हैं, तो वो मेटाफर हो जाता है। यानी एक स्टेप आगे उस चीज को वैसा ही कह देते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर हमारी लैंग्वेज जो है वो मेटाफोरिकल होती है। ठीक है। जैसे कहते हैं तुम इतना शोर कर रहे हो, तुम्हारी आवाजें मेरे सर में लग रही हैं। कहाँ लग रही हैं? नजर आ रही है आपको? नहीं। तो ये लैंग्वेज हमारी मेटाफोरिकल होती है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दी। इसके अलावा शी रैन लाइक अ बुलेट, शी इज ए फास्ट रनर है, उसको ये कहना था फास्ट रनर की, शी रैन लाइक अ बुलेट कह दिया। वो कोई रेसें वगैरह जीत रही होगी बच्ची, एथलीट होगी। उसके बाद ग्रैंडमा हैज अ ग्रीन थंब, ये एक मुहावरा होता है। इसका मतलब होता है ग्रैंडमास गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अगर ग्रीनरी किसी जगह पे बहुत ज्यादा हो तो कहते हैं कि उसका ग्रीन थंब है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी हमें अपनी बातों में, अपने खतों में, अपनी रिपोर्ट्स में, या ज्यादातर जब हम कोई स्पीच कर रहे होते हैं, यानी चाहे ऑफिस में हो, हमें जरूरत होती है। लास्ट जो है इसका कर्टसी है, आज लास्ट इसका टॉपिक है। कर्टसी में आपने पोलाइट रहना है, आपने कर्टियस रहना है, आपने तमीज का मुजाहरा करना है। ठीक है। आपने अखलाक का मुजाहरा करना है, एथिक्स का मुजाहरा करना है। इसमें किसी को फील नहीं करना होता, बट इट इज एथिकल। आपको घर में टीचर्स ने, बड़ों ने अगर कोई कर्टसी सिखाई है, एटिकेट सिखाए होते हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। और ये बात इसलिए बता रही हूँ कि डेफिनेटली हम अपने घरों से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमें मुआशरा भी बहुत कुछ सिखा देता है। और हमारा दिमाग किधर है? हमारा दिमाग भी हमें सिखाए कि कौन सी चीज राइट और रॉन्ग है। जब हम बाहर निकलते हैं, से मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, उसके पेरेंट्स बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप बाहर निकले, आपने दुनिया देखी, आपका दिमाग काम कर रहा है ना, आपको पता चल जाएगा। आप यकीन करिए, बाजुकात जब मैं ट्रेनिंग वगैरह करा रही होती हूँ, तो बाज लोग ऐसे बहुत हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं और वो एडमिट करते हैं। अभी मेरी लेटेस्ट जो लॉकडाउन से पहले एक ट्रेनिंग करा रही थी, उसमें एक साहब थे, आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। बल्कि दो साहब ऐसे थे, मैं उनको इतना अप्रिशिएट करूंगी। एक तो वो नहीं थे, डिसेबल थे, उनकी टांग ठीक नहीं थी, और वो इतनी उनकी जिंदगी में स्ट्रगल थी। और वो बता रहे थे मुझे कि वो इतनी हम्बल फैमिली से बिलोंग करते थे। और उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके बड़ा भाई जो था थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया था, और वो शायद दुबई उसकी जॉब हो जाती है। व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम बैक, वो अपने भाई को इस तरह से डिस्करेज भी करता था। वो कहता था कि तुम ना वो कोने वाली दुकान, सड़क पर या गली में सम टेलर कोई बैठता है, तो उसे तुम ये सीख लो और तुम बस टेलर बन जाओ, तुम और नहीं कुछ कर सकते। तो ही टर्न इनटू द ऑफिसर, तो वो एक ऑफिसर बन गया फिर। तो वो उसको अप्रिशिएट करती हूँ। और एक और साहब थे, तो उनके फादर अभी भी वो कहते हैं कि वो खेतों में इस वक्त भी यानी काम कर रहे होंगे और वो लगाते हैं, फसल वगैरह लगाते हैं। तो ही वॉज जस्ट वेरी हम्बल बैकग्राउंड के थे, बट ही स्टडीड हार्ड, वर्क किया बहुत, और वो अच्छे यानी आ गए लेवल पर। तो ये मैं बताने लगी हूँ। तो अब क्या है, हम अपनी बात ये बताने लगी हूँ कि कर्टसी चाहे आपको घर सिखाए ना सिखाए, आपको खुद सीखनी है। यू आर सपोज टू बी देयर, कि आपके पास का पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होते, बट स्टिल वो आपको मैनर्स शो करने होते हैं। अब एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
उसमें ये होता है कि बच्चों को समझाने के लिए, स्पेशली फिर वही बात है बॉयज के लिए बड़ी हंसी वाली बात होती है, मैं उनको कहती हूँ कि तुम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे हो, अगर एक बूढ़ा पर्सन खड़ा है और तुम उसको सीट दे देते हो, दिस इज कंसिडरेशन। आप उसको फील करते हैं, बूढ़ा है, उसमें इतनी सकत नहीं होगी, तो मैंने उसको दे दिया जगह, काइंड ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा है ना, आपको फील किया। अगर एक लड़की खड़ी है और आप क्या करेंगे, कर्टसी, आप उसको जगह दे दें। अब आप कहेंगे नहीं मिस हम बहुत कंसिडरेशन करेंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे, दिल चाहता है, लेकिन ज्यादा कर्टसी शो करेंगे बिकॉज इट इज कर्टियस, आप रिस्पेक्ट करेंगे कि खातून लड़की खड़ी है, इट्स बेटर मैं इसको जगह दे दूँ और बैठ जाए। द थिंग इज दैट, तो ये मैं आपको बताने लगी हूँ, इट्स देयर। और आपकी कर्टसी है किसी को रिस्पेक्ट से बुलाना, किसी को पुकारते हुए सही तरह से बात करनी, दिस इज कर्टसी, तो आपने शो करनी है। अब इसमें है यहाँ पर वाई रह गया, अप्लाइंग सोशली एक्सेप्टेड मैनर्स इज अ फॉर्म ऑफ कर्टसी, पोलाइटनेस एट ग्रोज आपको रिस्पेक्ट से शो होती है। कर्टियस कम्युनिकेशन जो है वो स्पेशल टोन होती है उसकी राइटिंग में और स्पीकिंग में, आप बहुत एटिकेट का मुजाहरा करते हैं। यहाँ पर आप बड़े टेक्टलेस होके, सॉरी टेक्टलेस नहीं होना, ब्लंट नहीं होना, टेक्टफुल होके बात करेंगे। यहाँ पे किसी को कह दिया स्टूपिड लेटर्स, आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ देम, पढ़ रहे थे किसी के खत हैं, आपने कहा ये बहुत बुरे लिखे हैं मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसकी जगह आप कह सकते थे आई शुड हैव अंडरस्टूड इट एज देयर इज नो कंफ्यूजिंग वर्ड इन दिस लेटर्स, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन, यानी तमीज से कह दो कि मुझे नहीं समझ आ रही है, ठीक तो लिखा लगता है लेकिन आप मुझे समझा दें। और दूसरा है इट्स योर फॉल्ट यू डिड नॉट प्रॉपरली रेड माई लेटेस्ट फैक्ट्स, तुमने मेरी फैक्ट्स नहीं पढ़ी थी, उसको कहो समटाइम्स माई वर्डिंग इज नॉट प्रिसाइज, लेट मी ट्राई अगेन। ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं तो मैंने आपको इसमें से निकाल कर बता दिए हैं, ये आपके पास है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको लिंक, ये मैं दिखा रही हूँ सिर्फ, एक लिंक आपको भेजूंगी, आपका दिल चाहे और पढ़ना, मेरे ख्याल से ना पढ़ो, ठीक है काफी हो गया, और पढ़ना तो ये लिंक रखा है, इसमें काफी चीजें पढ़ी है, ठीक है। इसके पेजेस आगे पीछे होते हैं, आप लेसन नंबर 7 है जैसे आ रहा है, लेसन नंबर 6 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, दिल चाहता है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो रहने दो, मेरी तरफ से इट्स ओके जो आपके पास नोट्स है। ये मैंने आपकी तसल्ली के लिए हाटा मफी की बुक से एक पेज निकाला है, ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मैंने आपको शुरू में भी लिख के रखा है और यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, इसमें से सवाल जरूर आते हैं, आपके नोट्स के टॉप में ये लिखा है मैंने, ठीक है, वहीं से पढ़ लेना ये वाली चीजें, और वैसे ये आपकी बुक से है। और इसके अलावा ये जो है ये आपकी बस प्रैक्टिस के लिए, आपका दिल चाहे तो जरा पढ़ के देख लेना कि अगर मेरा जूनियर ये वाले मैसेजेस लिखे ऑफिस में, मुख्तलिफ सिचुएशन के मैसेजेस हैं, तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपका दिल चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मेरे पास 2 हैंड आउट थे, मैंने इसकी कॉपीज आपके लिए रखती हैं, आप इसको बस प्रैक्टिस के लिए देख लेना। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप सारी नोट्स पढ़ेंगे अच्छी तरह, जो स्लाइड्स हैं वो तो जिन्होंने सुना है मुझे उनके काम आ सकती, वरना कोई फायदा नहीं उनको होना, और फिर आपने नोट से याद करना है। बात समझ में आ गई? अब हम नोट्स पे जाते हैं ताकि आपको मैं क्लियरली बता सकूं कि आपने करना क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ेंगे। जी जनाब, अब हम कंसिडरेशन पे आते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं आपको टॉप पे ले जाऊं, यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ ये बात बतानी है, ये देखिए, ये वही जो मैंने आपको 7 सीज का पेज दिखाया है ना, उसका हटा मफी का ये लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना आपने, ताकि कंफ्यूज ना अपने आप को करना जब वो पूछेगा ये कहाँ से लिया मैंने, ठीक हो गया। अच्छा ये 2 हमने कल कर लिए थे कंसिडरेशन में, आपने क्या याद करना है इसमें, हो सकता है मैंने नोट्स में नीचे भी लिखा हो लेकिन आपने इसको याद करना है। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी, अब आपको मेरी बात समझ आ गई ना, मैंने डिटेल में बता दिया। उसके बाद है शो ऑडियंस बेनिफिट, ऑडियंस की बेनिफिट की बात करो कि आपको ये फायदा होगा अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं। इसकी मैं आपको मिसाल एक और दे देती हूँ अभी नोट्स पे जाने से पहले। इसकी मिसाल ये है कि एक कंपनी थी, वो सीरियल बेचती थी, सीरियल में दलिया, पॉरिज, सीरियल जरा डिफरेंट होता है, जैसे कि केलॉग के सीरियल्स ज्यादा मशहूर है। उन्होंने क्या किया कि उस कंपनी ने उसके अंदर और कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, न्यूट्रिशन ऐड की, जिससे उनका खर्चा बढ़ गया, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई उसकी, तो उन्होंने लोगों से भी तो लेनी है ना, तो ज्यादातर सीरियल जिनके यहाँ फिर वही बात है बचपन से रिवाज है,
वो खाते रहते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, सीरियल सुबह डाले दूध में खा ली। लेकिन ज्यादातर बूढ़े बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फुल फाइबर डाइट होती है, ऑर्गेनिक अगर चीजें भी होती हैं तो वो खाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, कीमत बढ़ानी है, उन्होंने इस तरह से उस पर वर्किंग की, इस तरह से पिक्चर शो की कि लोग अभी भी उसी तरह खरीदते रहे चाहे उसकी कीमत बढ़ गई। तो आपने बताया कि जी हमने पैसे आपसे एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर रहे, उसके बदले में हमने बहुत काम किया है, हमारी जो साइंटिस्ट ने, हमारी जो रिसर्च डिपार्टमेंट ने, और फिर आपको ये सीरियल दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। समझ आ रही ना बात की? और इंटरेस्ट इन द रिसीवर, यानी आपकी जो नीड्स हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट है। उसके बाद एम्फेसाइज, आपने पॉलिटिसाइज का मतलब है आपने बहुत ही पोलाइट वे से बात करनी है, प्लेजेंट फैक्ट्स देने हैं, ये आपने याद रखना है यहाँ पर, या पॉजिटिव फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके बाद कॉन्क्रीटनेस हम पढ़ेंगे, कॉन्क्रीट में यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया आपको। पुट एक्शन इन योर वर्ब, ये पहले भी आपने पढ़ा है कि आप सीधी बात किया करें। एंड चूज विविड क्लियर इमेज बिल्डिंग वर्ड, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो जिससे लोग इमेजिन करना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्लैरिटी कल पढ़ा दिया था। कर्टसी लास्ट पॉइंट है, बी सिंसियरली टैक्टफुल, आप टैक्टफुली बात करें, थॉटफुल किसी का ख्याल करें, एप्रिशिएटिव किसी के टाइम को अप्रिशिएट करें, किसी की एनर्जी को अप्रिशिएट करें, और यूज एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट, ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें जो रिस्पेक्ट शो करते हैं। चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी को याद रखिएगा, इसका मतलब होता है फर्क नहीं करना, तजाद नहीं करना किसी बड़े छोटे को। जैसे फॉर इंस्टेंस कह देना कि जी बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, इसकी बजाय आप एक्सपीरियंस्ड वर्ड यूज कर सकते हैं अपने कॉलीग के लिए। बूढ़ा कहने के बजाय उनके लिए वेरी एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। तो आपने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, और ना ही खवातीन के लिए जैसे डिस्क्रिमिनेशन, हाँ जी ये खातून है रहने दीजिए कर लिया इन्होंने काम, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। आप ऐसा नहीं कह सकते, यू नेवर नो कि कोई कितना काम कर सकता है। और ये जो है ये वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम वाली ये बात है दुनिया भर में। ऐसा एक और भी मैं एक रिसर्च आपको बताती हूँ, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे रिसर्च हुई थी। उन्होंने क्या किया कि एक आईटी डिपार्टमेंट था कोई, वहां पर उन्हें कोई 4-5 लोगों को हायर करना था, ये बाहर की एक रिसर्च थी। उस पे उन्होंने क्या किया कि लोगों के सीवीज मंगवाए, उन्होंने सीवीज जो थे ना उसको दूसरे किसी और जगह पे भी जहां हायरिंग हो रही थी वहां पे एक तो उन्होंने मेल फीमेल के नाम शो कर दिए, ये मेल का है ये फीमेल का है, और दूसरी जगह पे उन्होंने नाम इरेज कर दिए और उसके अंदर से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसमें शो नहीं हो रहा था ये सेंडर जो है सीवी का मेल है कि फीमेल है। तो उन्होंने देखा कि तकरीबन 50% खवातीन हायर हुई थी और 50% मर्द हायर हो गए थे। और दूसरी जगह पे जब उन्होंने बता दिया था तो उन्होंने फीमेल कम सेलेक्ट की थी। तो ये मैं आपको बता रही, ये मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट और इस तरह की बातें, बहुत फिजूल बातें लगती है मुझे, मैं इसमें कोई बात नहीं करती। मैं सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि ये कुदरती फील है, कुदरती फील है। आपको लगता है कि एक से एक खातून है और मैरिड भी है तो आप कहेंगे कि ये नहीं नहीं ये पूरा काम नहीं आ सकेंगे, इसकी मतलब उसकी लायबिलिटीज होती है ना, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आपको ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा सा है कि आप इसका ध्यान करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है काम के ऊपर, जब आप जॉब पे जाएं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ये आप करेक्टनेस आपको पढ़ा दी थी। अब मैं जा रही हूँ कंसिडरेशन के ऊपर, और कंसिडरेशन से पढ़ेंगे हम, बाकी सारा आपको मैंने पढ़ा दिया था, ध्यान से नोट्स पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल तक हमने करेक्टनेस पढ़ा था, आपको याद है, फैसलाबाद की एग्जाम्पल दी थी जी। कंसिडरेशन में आपको ब्लॉक में मैंने डिक्शनरी के मीनिंग बताए होते हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं। और मैं प्लीज एक दफा फिर बात बता दूं सबको, नोट्स से पढ़े होते हो, या तो मैंने कोई एग्जाम्पल ब्लॉक की होती है, या फिर मीनिंग बताए होते हैं, या फिर तीसरी बात होती है कि आप उसको पढ़ लो, उसमें थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है किसी ब्लॉक में जो मैं चाहती हूँ एक दफा पढ़ डालो ताकि तुम्हें समझ आए, या मुझे थोड़ा सा कह लें कि एक
वो कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके आपको बताती हूँ कि कहीं वहां से पेपर में से कुछ पूछ ना ले, तो मैं आपको वो सोर्स में से कुछ मटेरियल आपको देती हूँ। ठीक है जी। ये आपको जो आज मटेरियल मिलेगा वो बहुत सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन है, प्लस मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं जो कि यानी गूगल करके आपकी जो मर्फी में जितनी चीजें हटा मर्फी में पड़ी हैं वो इसमें डालेंगे। अच्छा जी, पहली लाइन, कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर प्लेस, अपने आप को उनकी जगह पे रखकर देखो। समझ आ रही है बात की? ओके। इसके बाद, इफ यू आर कंसिडरेट यू डू नॉट लूज योर टेम्पर, अगर तुम्हें कंसिडरेट हो तो तुम्हारा दिमाग काम करता है, तुम कूल रहते हो। अब टेम्पर लूज करना, गुस्से में जल्दी आ जाना, और वैसे भी आपको बता दूं जो लोग जल्दी गुस्से में आते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग नहीं होते। इमोशनल इंटेलिजेंस एक और सॉफ्ट स्किल है हमारे अंदर, जिससे हम लोगों के एंगर को मैनेज करते हैं और अपने एंगर को भी मैनेज करते हैं। ठीक है, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हमें होना चाहिए। इसके बाद लिखा है आप टेम्पर लूज नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, अपना काबू से बाहर नहीं हो जाते हो, अपने जज्बात को नहीं करते हो। यू डू नॉट एक्यूज, तुम किसी को इल्जाम तराशी नहीं करते। यू डू नॉट चार्ज देम विदाउट फैक्ट्स, बगैर फैक्ट्स देखे उस पर चार्ज करना, उस पर इल्जाम लगाना, उसको कोई सजा देना, ऐसा नहीं करते। ये सारे हर्टा मर्फी के अल्फाज हैं। इसके बाद है यू आर मोस्ट अवेयर ऑफ देयर डिजायर्स, प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टांसेस, यानी आप जब कंसिडरेट होते हो, आप चाहो तो इसको मिला देती हूँ क्योंकि इसी का हिस्सा था, मैंने जान के अलग किया था ताकि क्लियरली पढ़ा जा सके। यू आर मोस्ट अवेयर ऑफ देयर डिजायर्स, आप उनकी डिजायर, प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस, हालात, इमोशन एंड प्रोबेबल रिएक्शन, या प्रोबेबल मीन एक्सपेक्टेड रिएक्शन जो वो दे सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट के बाद, आप उसको फील करते हो। और आप जब कंसिडरेट होते हो आप यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हो, मैं सिखा चुकी हूँ। एम्पथी फील करते हो, उसको फील करते हो। और एक लफ्ज ऐड हुआ, ह्यूमन टच। ह्यूमन टच मीन एक इंसानों को फील करना। ठीक है, आप उसको फील करते हैं और ह्यूमन नेचर को फील करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर मैंने और ऐड कर दी। इसके बाद लिखा है इन द ब्रॉड सेंस, सारा नहीं मैं जाहिर पढ़ूंगी, आपको समझाती जाती हूँ। इसमें सिर्फ ये बात मैंने लिखी है इन ब्रॉड सेंस में, जहाँ पे 6 सीज का जिक्र आया। इसका मतलब ये है कि बाकी सीज आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप सिर्फ कंसिडरेट ही हो जाओ कि मेरे रिसीवर को क्या चाहिए, पूरी खबर चाहिए, कंप्लीट चाहिए, उसके क्या नीड है इस वक्त, सारा कुछ मैं कर लूं, तो मैं क्या करती हूँ जबरदस्त भेजती हूँ। इसके लिए आपने फोकस, वही बात, आई पे फोकस, यू पर करो, वी पर ना करो, और ऑडियंस का बेनिफिट बार बार आ रहा है, प्लेजेंट फैक्ट्स एंड पॉजिटिव चीजें दिखाओ, एम्पथी शो करो। ये पढ़ोगे तो अब तुम्हें समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक और चीज ख्याल करनी है आपने, यहाँ पे ये आखिरी जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये रिलेटेड है नीचे वाले पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल से, ये मैं रेड सारा येलो कर देती हूँ। इसमें लिखा है कि अपने आप को फील करो कि तुम्हारा मैसेज जो है जाएगा तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर, पहली बार, ये पहला पॉइंट, पहली बुलेट, व्हाट डू दे रियली नीड, उन्हें क्या चाहिए। इसमें मैंने मिसाल लिखी है। इसमें मिसाल लिखी है कि अगर आपके कस्टमर को एक ऐसी चीज खरीदनी है जिसमें सेफ्टी चाहिए उसको, मिसाल के तौर पर आप खुद लिख लेना इसके आगे, एक फायर अलार्म खरीदना है, आप उसको फायर अलार्म बेचेंगे, क्या वो इस चीज पे राजी हो जाएगा कि जी पता नहीं, ये ले लें आप, लेकिन ये सस्ता है, तो आप क्या खरीदेंगे? नहीं। तो आपने वो खरीदना है जिसमें सेफ्टी हो। जैसे कोई खुदा ना खासा बीमार हो जाता है, आप मेडिसिन लेने जाते हैं, आप वो पर्टिकुलर मेडिसिन ढूंढते हैं, आपको लाख कहता है ड्रग वाला, वो जो केमिस्ट होता है वो कहता है कि जी ये जो है ये वाला ले लें, ये वाली, इसी में ये दवाई सही है, तो आप उस पर तवज्जो नहीं देते। खुदा ना खासा अगर कोई ज्यादा बीमार हो तो हमें सेफ्टी चाहिए, पैसे नहीं हमने बचाने, उस वक्त हम पैसे नहीं बचाते। तो आप व्हाट डू दे रियली नीड, इसका ख्याल करें। इसके बाद है व्हाट इमोशंस माइट दे करंटली बी फीलिंग, इस वक्त वो किस मसले का शिकार है। इसमें यहाँ पे लिखा है एंग्री एंड बिट्रेड। अब मैं आपको समझा देती हूँ। गुस्से में है, बिट्रेड मीन धोखा हुआ। अक्सर ऐसा होता है ना, हम एक चीज लाते हैं, वो टूट जाती है या खराब हो जाती है, तो हमें यकीन होता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया। और बिट्रे का मतलब है हमें किसी ने फ्रॉड कर लिया, बिट्रे होता है धोखा हो गया, डिसीव कर लिया। तो इस वक्त मैं इस केस में हूं कि मुझे तुमने डिसीव कर दिया, धोखा दिया है, तुमने मुझे बताया नहीं था,
अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली, तो प्लीज मुझे फील करो, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक मिसाल इसमें फिर देती हूँ आपको, जो एक और किसी किताब में लिखी हुई थी कि एक बूढ़ा कपल है, वो किसी जगह पे जाके सेकंड हैंड, या सेकंड हैंड कह लें आप, सेकंड हैंड नहीं था, बी पेयर में कुछ चीजें खरीद लाता है। एक काउच खरीदता है, सोफा बड़ा सा। घर आते हैं तो देखते हैं कि उस पर तो इतना बड़ा दाग है, उसका एक स्प्रिंग टूटा हुआ है। भाई सवाल पैदा होता है कि जब आपने बी पेयर से चीज उठाई है, उसमें कोई डैमेज तो होगा। तो वो आगे उसको खत लिखता है और ईमेल करता है कि ये क्या है, हमें तो धोखा हो गया है, आपने बताया नहीं। फिर वो उसको समझाता है कि आपने बी वाली विंडो से लिया था, 70,000 का ये था, आपने 16,000 में खरीदा है। एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ब्रांड खरीद रहे हो और 70,000 से 16 पे ले रहे हो, यानी 16 पे ले रहे हो, तो सोचने वाली बात थी। तो कोई बात नहीं, हम आपको फिक्स करने वाला भेजेंगे, वो कम पैसों में फिक्स करेगा, तो आपको ये से 20 में पड़ जाता है, तो ये उतना ही नया हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपने ध्यान से करनी है, आपने फील करना है कि वो हैं, बूढ़े भी हैं और उनको लगता है कि उन्हें धोखा हो गया। इसके बाद है व्हाट इमोशंस, आप अब आपका मैसेज उनके अंदर क्या फीलिंग लाएगा ये आपने सोचना है। उसके अलावा उनकी प्रॉब्लम को सोचना है और देखना है कि कहीं मैं उनकी रिस्पेक्ट ना खो दूं। ये यहाँ पे लिखा है अगला पॉइंट, ह्यूमिलिएशन कहते हैं शर्मिंदगी होना, कि कहीं उनको एकदम से ह्यूमिलिएशन हो गई या आपने इंसल्ट कर दी, तो क्या होगा, वो आपसे कभी आइंदा से आपका कस्टमर नहीं रहेगा, या आपसे बात नहीं करेगा, आपका कॉलीग है आपसे बात नहीं करेगा, आपका जूनियर है आपसे बचेगा, ये सब कुछ है। इस पर एक पॉइंट मैंने ऐड किया जो आपकी बुक में लिखा है, फ्लैटरी एंड चार्म, यानी फ्लैटरी की बातें करना, यानी बहुत अच्छे हैं आप, बड़े नाइस हैं कहना। वो कहते हैं कभी कभी आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कॉलीग को बात समझनी है, तो आपने कहा कि मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आपका बहुत नॉलेज है, लेकिन जब फ्लैटरी करोगे तो जरा ध्यान करना, ज्यादा मक्खन ना लगा देना, कि वो कहीं ये ना समझे कि क्या कर रहे हो, एग्जैजरेट मीन मुबालगे से काम लेना, तो कहीं वो ये ना समझे, और इससे आपकी क्या लूज हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी, वो अब आप पे यकीन नहीं करेगा। इसके बाद यू एटीट्यूड क्या है, आप इसको पढ़ेंगे, फोकस ऑन यू सारा मैंने आपको सिखा दिया। यू एटीट्यूड सेंसिटिव केसेस में नहीं इस्तेमाल करना, और आपने किस तरह से बात करनी यू एटीट्यूड में, सारे पॉइंट्स पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक मिसाल समझा देती हूँ, ये जो लिखी हुई है ये अक्सर पेपर में ये भी आपको इस्तेमाल वो कर सकता है, क्योंकि आपका बिल्कुल ये बड़ी मशहूर मिसाल है। इसमें क्या है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि यू कांट ट्रेवल, अगर आपसे ये पढ़ा जा रहा है, you can't travel business class on short haul flights। short haul flights क्या होती हैं, थोड़े घंटों की, जैसे 3 घंटे से कम की। तो अगर आप 3 घंटे से कम की ट्रेवल कर रही है ना, तो आपको क्या करेंगे, आप बिजनेस क्लास पे नहीं जा सकते। ये आपको ऑफिस की तरफ से टिकट मिला, बड़े खुश खुश घर आए हैं, वाह जी मैं जा रहा हूँ, मैं बिजनेस क्लास में सफर करूंगा और क्या बात है, लोग मेरे आगे पीछे होंगे, आप सारा कुछ कर चुके हैं। लेकिन आपको बताया गया है कि छोटी फ्लाइट है, आपको ट्रेवल की ये क्योंकि कंपनी अलाउ नहीं कर रही, और उसमें वो कहता है कि ऐसा ना कहो, बेचारा दिल टूट जाएगा। अगली लाइन है, आप कह सकते हैं यू कैन ट्रेवल बिजनेस क्लास ऑन लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स। जब आप लंबी जाएंगे, 6 घंटे से बड़ी फ्लाइट पे जाएंगे, तो आपको क्या होगा, आपको बिजनेस क्लास मिलेगा, ताकि आप टांगे शांगे खोल के बैठे रिलैक्स करें। क्योंकि जो इकोनॉमी क्लास होती है ना, उसमें तो आपको पता है कि टांगे, जगह उसको लेग रूम कहते हैं, कम होती है, आपकी टांगे रह जाती हैं अगर आप लंबे सफर पे जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द क्या कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी। लेकिन अगर आपने से अमेरिका न्यूयॉर्क फ्लाइट लेनी है लंबी, कनेक्ट जो स्ट्रेट फ्लाइट जाती है, बहुत लंबी है, लेकिन जब अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा तो फिर उस पर जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ये मिसाल दी है। इसके बाद यहाँ पर आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस, मैं बता चुकी हूँ आपको स्लाइड के ऊपर। और इसी तरह ही यू एटीट्यूड वी एटीट्यूड ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, मैं बता चुकी हूँ एग्जाम्पल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, यू हैव नॉट सेंट द रिपोर्ट, ये नेगेटिव सेंसिटिव केस था, द रिपोर्ट वॉज नॉट रिसीव्ड, ये मैं मिसाल इस तरह की दे चुकी हूँ आपको, ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जी आगे एक और यहाँ पे मिसाल है, ये भी पढ़ लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल दी है यहाँ पर, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वी एटीट्यूड की, यू एटीट्यूड की बहुत अच्छी मिसाल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा मोर अबाउट कंसिडरेशन, इसमें मैंने एक चीज आपको समझाई है, प्लीज ये पढ़ लेना, यूफेमिज्म। ये पेपर में आ सकता है क्योंकि आपकी हर्टा मर्फी की बुक में इसका जिक्र है। यूफेमिज्म पता क्या होता है,
समझ लें शुगर कोटेड लैंग्वेज। इसको कहीं लिख लिख लिया करो, मेरी बातों को लिख लिया करो, बाद में भूल जाओगे, क्योंकि नोट्स तो आपको सॉफ्ट में मिलेंगे ना, तो आप कहीं नोट कर लिया करो। यूफेमिज्म, स्पेलिंग खराब भी लिखते हो तो लिख लो, कोई बात नहीं। यूफेमिज्म जो होता है, आपने सॉफ्ट लैंग्वेज बोलनी है, आपने हार्श नहीं बोलना, ठीक है। आपने एकदम से सर पे किसी के, कहते हैं ना, एक थप्पड़ नहीं लगा देना, पत्थर नहीं लगा देना। आपने डायरेक्ट बात नहीं करनी, प्लेजेंट बात करनी है। अब मैं आपको समझा दूंगी ना, तो आपको समझ आ जाएगी। नीचे देखिए, एक लफ्ज है बिटवीन जॉब्स, somebody is between jobs, कह देना, इसका मतलब है somebody is unemployed। तो ये यूफेमिज्म की मिसाल है। कभी फायरिंग एम्प्लॉइज, लोगों को फायर किया जा रहा है, कितना बुरा लगेगा, उसकी जगह तुम लफ्ज इस्तेमाल करो डाउनसाइजिंग हो रही है हमारी कंपनी में, यानी लोगों को निकाला जा रहा है, कितना बुरा लगेगा, ठीक है। या वर्कफोर्स रिडक्शन हो रही है, ये यूफेमिज्म है, ये आपको सिखाया जा रहा है कि अच्छी लैंग्वेज बोलेंगे ऑफिस के अंदर। उसके बाद है एथनिक क्लींजिंग, खुदा ना खास्ता, जिसे हिटलर ने किया था, ज्यूज को मारा था। एथनिक क्लींजिंग का मतलब है दुनिया ही सारी उजाड़ देना लोगों की, उसे जीनोसाइड कहते हैं, यानी बड़े पैमाने पर लोगों की, जिसे उर्दू में कहते हैं नस्ल कुशी, लोगों को मार डालना, जैसे कि हिटलर ने ज्यूज को मारा था। इसके बाद बिग बोन्ड किसी को कहना जबकि वो बहुत हैवी ओवरवेट पर्सन है, यस ही इज बिग बोन्ड। पास्ट अवे, किसी को कोई फौत हो गया, पास्ट अवे, डाई नहीं कहना। ऑन द स्ट्रीट उन लोगों को कहते हैं जो होमलेस होते हैं, तो ये यूफेमिज्म है, इसे शुगर कोटेड लैंग्वेज कहते हैं। इसका इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। आप इसी तरह इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल का हम ये नहीं इस्तेमाल करते कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी लोग जो हैं, जैसे कहा जाता है कि एम्प्लॉइज कहा जाए, इसकी जगह पे हम आमतौर पे वर्क फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ी मिसाल आपको देती है, यस मुझे याद आ गई। मिसाल क्या है, पहले कहा जाता था चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, आपने अभी कभी सुना? अब पता क्या कहते हैं? चेयरपर्सन। क्यों कहते हैं? ताकि अगर फीमेल भी है तो क्लियर है, चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग कौन है जी? मिसेस जो है जका है फॉर इंस्टेंस, तो आप में से अगर कोई जका है तो खुश हो जाएगा, वैसे बात करेंगे। मिसेस जका है जी, ये कौन है? ये चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, वो चेयर कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप कहते चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, मिसेस जका कैसे लिखो? नहीं ना लिख सकती, और चेयर वुमेन होता ही नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये आपको चेयरपर्सन लफ्ज ऐड कर लो यहाँ पर कि आपने चेयरमैन की जगह पे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये बात हो गई हमारी खत्म। करेक्ट, कंक्रीटनेस, सॉलिड, सॉलिड बात, डेफिनेट, स्पेसिफिक। इसके नीचे स्पेसिफिक, यहाँ पे एक वर्ड है, डेफिनेट हो, विविड, विविड मीन क्लियर। उसका ऑपोजिट रादर देन वेग, अनक्लियर, मुबहम उर्दू में कहते हैं। जनरल, स्पेसिफिक का उल्टा है जनरल, बात जनरल मत करो। उसके बाद लिखा है कॉन्क्रीट, मिसेस कम्युनिटी, पर्टिकुलर, क्लियर, विविड, एक्सप्लिसिट, एक और लफ्ज, वाजे, जो नजर आ रहा है। और एक्सप्लिसिट हम इस तरह भी समझते हैं, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे आप जॉब पे जाएं तो आपको जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपको गाड़ी मिल गई, ये सारे एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स हैं, सबको दिखा सकते हो, टेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं, आप दिखाओ ये है हमारे पास, ठीक हो गया। दूसरे होते हैं इम्प्लिसिट रिवॉर्ड्स, शाबाश मिलना, इज्जत मिलना, उसे इम्प्लिसिट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बात वाजे करो, एक्सप्लिसिट बातों में, ये रिवॉर्ड्स की बात नहीं, मैंने मिसाल दी थी आपको, वर्ड इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कैसे यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। और यहाँ एक और लफ्ज आ गया ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी वही है, नॉट क्लियर। वेग का मतलब भी वही है, नॉट क्लियर, ठीक हो गया। फॉगी आप इसे कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी, जस्ट टेक आई टेक वाटर। जी, अगला पैराग्राफ देखिए, इसमें है कॉन्क्रीट मैसेजेस जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने यहाँ पर लिखा है जब हम स्पेशली बात कर रहे हो तो हम डायग्राम टेबल तो नहीं ड्रॉ करते ना, हमारे अल्फाज होने चाहिए सॉलिड, समझ आ रही है बात की? तो इसलिए हम कॉन्क्रीट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं। एक्शन आप वर्ब में यूज करते हो, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल इसमें भी करते हो। और विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, जिसे आपको दिखाई दे, इस्तेमाल करते हो, ठीक है।
उसके बाद विजुअल इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं आपके दिमाग में। ये मैंने, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स इसी तरह मिल जाएंगे, जिसे आपको याद आ जाएगी मैंने क्या क्या बोला था। ये सारी आप समझेंगे, आपको समझ आएगी। देखिए यहाँ पर एक मिसाल मैंने लिखी है, किसकी, आपकी जो मैंने अभी फिगर्स की इस्तेमाल की है। इट वॉज वेरी हॉट इन द फैक्ट्री। अगर मैं आपको फैक्ट्री का सर्वे करके आई हूं तो आके बताया, आप पे असर नहीं हुआ। ये आपकी बुक से है, मर्फी से है। उसने लिखा है आई सॉ दैट स्वेट वाज ट्रिकलिंग डाउन द आर्म्स ऑफ वर्कर्स। यानी इतना पसीना बह रहा था कि वो पसीने से शराबूर हुए हुए थे। कभी कभी जरूरत पड़ती है, आपको लिखना पड़ जाता है, बोलना पड़ जाता है, ये है। और यहाँ मैंने लिखा है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मुहावराती लैंग्वेज, जिसमें मैंने नीचे लिखा है सिंबल का इस्तेमाल, सिमिलीज का इस्तेमाल, मेटाफर का इस्तेमाल। ठीक है, ठीक है, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको करते, जैसे कुछ लोग कह देते हैं पहाड़ जैसी जिंदगी है, यानी इतनी बड़ी अभी जिंदगी पड़ी है, तुम अभी से फैसला करके बैठ गए हो। तो क्योंकि पहाड़ को सिलसिला शुरू हो जाए तो कितना लंबा होता है, ऑब्वियसली पहाड़ जैसी जिंदगी। और वैसे भी पहाड़ जो होते हैं ना, मेरे ख्याल में आपको, मुझे याद है नाम है मैथ्यूसेला, एक जगह एक है, वो एक ना ट्री है, और वो दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है मैथ्यूसेला। अगर आप चेक करना चाहो इंटरनेट पे चेक कर लेना। मेरे ख्याल कैलिफोर्निया साइड पे वो है। और वो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी मैथ्यूसेला जैसी है, यानी एक बंदा इतना बूढ़ा है और वो उसकी जिंदगी ज्यादा हो गई है। तो हम, कहने का मतलब है, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते रहते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्कर्स वर्किंग लाइक मशीन्स। अब वर्कर्स मशीन की तरह तो नहीं काम कर रहे, नहीं ना कर रहे। हिज ब्रेन इज अ कंप्यूटर, ये एक मिसाल दी मैंने। तो आप ये देखिए कि उसका ब्रेन जो है कंप्यूटर तो नहीं हो सकता। तो ये आपको क्या होगा, इससे भी आपको समझ आ जाएगी कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। उसके बाद है यहाँ पर कुछ और मिसालें दे दी हैं। सेल इंप्रूव हो गई है, ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड कॉन्क्रीट मैंने इसमें एग्जांपल दी है। इसके बाद ये आपने ये मिसाल तो आप पढ़ेंगे, ये वाले वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं, ये आपकी बुक में है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये वेग है। स्मॉल, अ फ्यू, सेवरल, इसके इस्तेमाल ना करना। इसकी जगह एग्जैक्ट बताओ। आप कहेंगे जी मेरा ऑफिस है, नहीं नहीं उसके ऑफिस का कमरा थोड़ा छोटा है, स्मॉल है। ये छोटा क्या होता है, जाके तुम देखो तो वो बिल्कुल इतना होगा कि बंदा वहां खड़ा ना हो सके। तो आपके ख्याल में स्मॉल क्या होता है, गिव सम आइडिया। तो ये आपने सही बताना है। फिर बेनिफिट्स मैंने लिख दिए कॉन्क्रीट क्या होते हैं। इसके बाद इमेज एंड बिल्डिंग वर्ड्स बताइए, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, ये मैंने मिसाल दे दी आपको। ठीक है, और आप इसको देख लेंगे। और कॉन्क्रीटनेस के बारे में लिखा है ना, मोर अबाउट कॉन्क्रीटनेस, तो जरा इसको पढ़ लेना एक दफा, ये सिर्फ पढ़ने के लिए। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में इसका इस्तेमाल है। ये मैं अंडरलाइन कर, सारा रेड कर रही हूँ, येलो कर रही हूँ। ये पता क्या है, आपको वो हो सकता है सवाल पूछेगा डेनोटेशन क्या होता है। डेनोटेशन का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग्स, कॉनोटेशन इमेजिनरी मीनिंग्स। याद रखिएगा, ये सारा मैंने लिख दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको फिगर्स पीछे सिखाए हैं। अब कॉनोटेशन होती क्या है, कॉनोटेशन होती है किसी चीज की कॉनोटेशन पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुछ वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ हमेशा ही नेगेटिव होती है। उसमें मैंने एक मिसाल यहाँ पे कहीं लिखी भी है कि ये वाली मिसाल भी पढ़ लीजिएगा आप। लेकिन मैंने आपको एक मिसाल देनी है, मिसाल के तौर पर एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस। ठीक है जी, तो ये लिखा है मैंने स्ट्रेस। स्ट्रेस जब आप कहते हैं वो बंदा को बड़ी स्ट्रेस है, तो आप कभी भी सोच सकते हैं कि स्ट्रेस अच्छी हो सकती है, नहीं ना। हमेशा स्ट्रेस से नेगेटिव बात आती है। तो स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन कैरी करती है, नेगेटिव फीलिंग्स कैरी करती है। और अगर एक लफ्ज में बोलती है हैप्पी, तो क्या कभी रोता हुआ चेहरा आपके ज़हन में आएगा, नहीं ना। तो हमेशा पॉजिटिव कैरी करती है। तो हमें लफ्ज ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, मैनेजमेंट की किताबों में आप पढ़ेंगे अगले लेवल पे जाके, वो कहेंगे स्ट्रेस इज गुड, उसे कहते हैं यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो यू स्ट्रेस क्या होती है, कि अगर आपको इम्तहान की स्ट्रेस ना हो कि फलां डेट को पेपर है, तो क्या तुम पढ़ोगे, नहीं ना। तो अच्छी स्ट्रेस है ना, पढ़ो। ठीक है, पढ़ो। तुम डेडलाइन दी है, फलां दिन रिपोर्ट आपने पेश करनी है, देनी है, सबमिट करानी है,
तो क्या ये बैड स्ट्रेस है? नो, इट्स गुड स्ट्रेस। आप काम रेगुलर करो। आप अपने ऊपर स्ट्रेस क्यों लेते हो? हाँ, तुम काम जब नहीं करोगे तो फिर स्ट्रेस हो जाएगी। तो यू स्ट्रेस है। ये बिल्कुल वैसे ही है, मैं बच्चों को पढ़ाते हुए जब मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ तो मैं उनको ये बात समझाती हूँ स्टूडेंट्स को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहते हैं ना दाग तो अच्छे होते हैं, है ना, ये वो चीज है। तो आप दाग का वर्ड जब यूज करते हैं तो डू यू थिंक कि आपके कपड़ों पर दाग लग गया इट्स गुड थिंग? नो। लेकिन अगर आप इट्स क्रिएटिंग सम गुड रिलेशनशिप तो फाइन, दिस इज गुड, ठीक है ना। तो ये है जी आपका कॉन्क्रीटनेस, आपको समझा दिया हमने। कर्टसी पे आ जाइए। कर्टसी जो है वो क्या है? कर्टसी मीन पोलाइटनेस। आपका एटीट्यूड पोलाइट है, आपका बिहेवियर, ये मैंने मीनिंग लिखे हैं डिक्शनरी के। कर्टसी जो है वो दूसरों की रिस्पेक्ट है, दूसरों का ख्याल है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान करना है लोगों का, एथिक्स का ख्याल करना है, मोरालिटी का ख्याल करना है, ठीक है, ये सारा आपने देखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने, बी सिंसियर एंड टैक्टफुल, थॉटफुल, अप्रिशिएटिव। ये पॉइंट्स हैं वही जो टॉप पे लिखे हुए हैं, ये आपकी हटा मफी के पॉइंट्स हैं। अभी मैं सारा करेक्ट करके, आपको थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, मैं इसलिए आपको भेजना चाह रही हूँ करेक्ट करके सारा कुछ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेना, एकदम से शुरू ना हो जाना कि नोट्स भेज दे, नोट्स भेज दे, ठीक है, मैं भी भेजती हूँ आपको। इसके बाद यूज एक्सप्रेशन एंड टर्मिनोलॉजी दैट शो रिस्पेक्ट, ऐसी बातें। अब देखो आपके ऑफिस में अगर कोई पर्सन है, उसको कहती है मोड ऑफ एड्रेस। मोड ऑफ एड्रेस का मतलब है उसको मुखातिब करने का तरीका, आपका क्या तरीका है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी बीमारी है, रवाज है, हम हर बंदे को सर 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 कहते रहते हैं, है ना, सर ये कर ले, सर वो कर ले। लेकिन ठीक है, कहना चाहिए, लेकिन बाहर कंट्रीज में ज्यादातर ना दे एड्रेस बाय देयर नेम्स, उनको मिस्टर समबडी, ठीक है, कह के बुलाते। लेकिन हमारे मुल्क में सर कहते हैं तो सर कह लो, खातून है तो मैडम कह लो, ठीक है, मिस कह लो किसी को। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको जब लेटर्स पढ़ाऊंगी उसमें भी कुछ थोड़ा सा आपको मैं तरीके बताऊंगी एड्रेस करने के, ठीक है, मैं उस वक्त के लिए छोड़ देती हूँ बात। इसके बाद है जी, इसमें एक चीज है, अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस एंड क्लीशेस। मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। देखो, इरिटेट करते हैं क्लीशेस, वो क्या है? क्लीशेस क्या होते हैं? क्लीशेस होते हैं घिसी पिटी बातें। मिसाल के तौर पर, अक्सर जब आपके किसी के लिए जज्बात नहीं होते तो आप कह दें नाइस टू मीट यू, तो चेहरा पता लग जाएगा, यू आर नॉट गुड, आपको अच्छा नहीं लगा, यू डोंट फील गुड। तो नाइस टू मीट यू समटाइम्स इट्स जस्ट अ क्लीशे, मन यानी पुरानी घिसी पिटी बातें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब आपसे बचपन में पूछा जाए बेटा आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो आप कहती हैं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंसानियत की खिदमत करूंगा। ये जो इंसानियत की खिदमत करूंगा ना, ये क्लीशे है, मान ले ये बात, कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं। तो अक्सर हम ऐसी बातें जब कर जाएं तो कभी कभार रिसीवर कहता है ये तो इसने उठाकर कॉपी पेस्ट कर दी है, इसे खुद कुछ नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आपने ये बात ध्यान से समझनी है जो मैं हाईलाइट करी हूँ, ये भी आपकी ओरिजिनल बुक में है। क्वेश्चनेबल ह्यूमर, ऐसा मजाक मत करना जिससे किसी कोई उखड़ जाए, किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। अब जैसे लोगों की आदत है, किसी को छोटा कह दिया, वो छोटे लोगों के सामने फॉर गॉड सेक मत कहो, चाहे वो आपसे एज में छोटा है, जूनियर है, व्हाटएवर। आप अपनी तरफ से बड़ा ह्यूमर शो कर रहे हैं और वो उसकी जो है ईगो हर्ट हो रही है, तो आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनेबल ह्यूमर का मतलब है ऐसा ह्यूमर जो आपको लोगों को क्वेश्चन यानी उठाए, पैदा करे, या लोग जो है परेशान हो। इसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब ये सारे जो मैं हाईलाइट करी हूँ ना, ये पेपर में इस तरह ही लफ्ज इस्तेमाल होंगे आपके इस टॉपिक के लिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, तजाद इम्तियाज नहीं करना, बिला इम्तियाज बात करनी है, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। और उसके लिए एक बड़ा अच्छा लफ्ज है अनबायस्ड, यानी न्यूट्रल। आप किसी के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करें, तो आपने ये करनी है। और इसके बाद है कि ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो किसी को ऑफेंड नहीं करे, ठीक है, किसी को स्पेशली बुरा ना लग जाए, कोई पर्सन जो है अनॉयड ना हो जाए, ठीक है, ये ध्यान करेंगे आप। और उसके लिए स्पेशली यहाँ पे लिखा है जब आप किसी और मुल्क में चले जाएं, तो यहाँ पे लिखा है किसी कल्चर के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ, जेंडर्स मेल फीमेल के फर्क, एथनिक ओरिजिन के लोग, कहाँ के इलाके के लोग हैं, एज का फर्क है, बूढ़े हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, खुदा ना खासा जैसे आपने देखा नहीं कितना मसला हुआ था, वो जो खिलाड़ी को मार दिया था जो पिछले दिनों, और उसको जो है उसके ऊपर कितना ब्लैक्स और ये वाइट ही तो हर वक्त ही मसला रहता है वहां पे,
बाहर कंट्रीज में, तो बहुत ही ज्यादा ये इसकी प्रॉब्लम रहती है और हमेशा रहती रहेगी, मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होने वाली है। तो वो कहते हैं कि ऐसी चीजें मत किया करें, ये ठीक नहीं है। और हमारे रिलीजन में तो वैसे ही आप समझते हैं कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट एड्रेस जो था वो एक इतनी जबरदस्त चीज है, अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो बार बार पढ़ा करें कि उन्होंने हर चीज हमें बता दी है कि हमें किस तरह से जिंदा रहना है। तो वहां पर बिल्कुल अगर आप इसको पढ़े, कोई भी पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ है कि यही कि आपने जो है ब्लैक और व्हाइट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, जो अरबिक नॉन अरबिक लोग हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, अपनी जात को लेके बड़ा ऊंचा बना लेना, किसी को नीचा समझना, किसी को कहना कि ये फला रिलीजन का है, यू कैन नॉट से। और ये सारी कुछ कहाँ आ गई हैं? कर्टसी के अंदर, ये आपके पॉइंट्स हैं। और इसके बाद है कर्टियस मैसेजेस टेक इनटू कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन का मतलब है ख्याल करते हैं बोथ व्यू पॉइंट्स एंड द फीलिंग ऑफ द रिसीवर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए अच्छे हैं, आपकी फीलिंग्स मेरे लिए अच्छी हैं, मैं उसका अदब करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, ये आपने शो करना है। कर्टियस मैसेजेस पॉजिटिव होते हैं, फोकस्ड होती हैं ऑडियंस पर। अवॉइड कम्युनिकेटिंग एंड एसर्शन, एसर्शन मीन कोई बात डाल देना, कोई बात जो है बहुत ही उस पर स्ट्रेस देना दैट द सेंडर इज राइट एंड द रिसीवर इज रॉन्ग, ऐसा कभी आप नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस कंफ्यूजिंग टेबल, इसको पढ़ लेना, ये मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दे दिए। और ये जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ज्यादातर आपकी ओरिजिनल बुक से ली गई, ठीक है जी। और उसके बाद है कर्टियस मैसेज जो है वो सिंसियर यू एटीट्यूड से शुरू होता है, यानी किसी को फील करने से शुरू होता है। ये आप देख लेना इस लाइन को, ये भी आपकी बुक में से ली भी है, आपकी ओरिजिनल बुक में लिखी है। और ये भी लिखा है यहाँ पर कि खाली पोलाइटनेस इसमें नहीं है कि थैंक यू प्लीज कह दिया, लेकिन आपका तरीका भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। किसी का कोई आपके टेबल आप काम कर रहे थे, किसी को कह दिया है प्लीज मेरा जो है ना वापस कर दीजिएगा, मेरा जो आप मार्कर लेकर गए थे, ठीक है, या पेन वापस कर दीजिएगा। बंदा आता है और ऐसे जोर से पटक के कहता थैंक यू, तो क्या थैंक यू आपके काम आया? नहीं ना आया। ये मेरे ख्याल है कि आवाज थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हो गई थी जी। अब आपका ये टॉपिक जो है इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपसे को देख लेती हूँ कि आपने कोई सवाल अगर किए हैं। जिन बच्चों ने सलाम किया है उनका वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग के लिए भी गुड लाइक मॉर्निंग टू यू। और इसके बाद अम, और कोई बात लिखी है आपको बता दिए, जो लेक्चर्स खुद ही खुल रहे, प्लीज मैनेजमेंट को अपनी कॉल कीजिए। फिजिकल क्लासेस से मैनेजमेंट को पूछिए प्लीज, मैं कल भी कह रही थी। ऑड वन आउट आपने दोबारा पूछा है, ऑड वन आउट का मतलब होता है कि अगर मैं आपको मिसाल अब दे देती हूँ कि मैंने 4 चीजें एक लिस्ट में लिखी है, मैं आपकी किताब से नहीं, यानी आपके टॉपिक से नहीं दे रही, वैसे ही दे रही हूँ, जनरली इस वक्त दिमाग में आ रही है। और वैसे भी 1.5 घंटा जब बोल के इंसान हटता है तो उसकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता। तो मैंने आपको ये बताना है कि मैंने कहा कि जी ऑड वन निकालो। मैंने लिखा है अपार्टमेंट, ठीक है, एक लफ्ज लिखा। एक मैंने लिखा है जी होम, एक लिखा है लफ्ज हट, ठीक है, और एक लफ्ज लिखा है ऑफिस। इन सारों में ऑड वन कौन है? आप कहेंगे ऑफिस। क्यों? बाकी चीजें अपार्टमेंट, होम, हट या कॉटेज चलो कह लो, वो सारे रहने की जगह हैं लोगों की, ऑफिस रहने की जगह नहीं है, तो ऑड हो गया ना बीच में। तो वो क्या करेंगे, आपको 7 सीज में से 4 जो लिखेंगे लफ्ज सी वाले, बस एक मिसाल दे रही हूँ, वो आपके 7 सीज में से होंगे, इनमें से एक नहीं होगा। मिसाल के ऊपर लफ्ज लिखा होगा कॉम्प्रोमाइज,
तो आप कहेंगे ये ऑड वन क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज को निकाल दो, ये हमारे 7 C's में नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ाऊंगी? नहीं बेटा। उस्मान मोहम्मद खान, मैं लाहौर में रहती हूँ, और वैसे भी मैं आपको लाहौर वालों को भी बता दूं, मैं लाहौर में भी नहीं पढ़ाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं ऑनलाइन सिर्फ पढ़ा सकती थी, अवेलेबल नहीं होती मैं। अच्छा, अब्दुल बासित खान, मैं आज फिर आपको नंबर डिस्प्ले कर देती हूँ जिससे आपने कनेक्ट करना व्हाट्सएप के लिए। ठीक है। कैन वी से वी आर डिलाइटली टू से इंस्टेड ऑफ, नहीं नहीं, डिलाइट, आई एम डिलाइटली टू से, आई एम डिलाइटफुल टू से, आई एम डिलाइटेड टू से, ये ग्रामर खराब हो गई आपकी। ठीक है। डिलाइटेड होता है पास्ट पार्टिसिपल विच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा जी, और है जी, आपने क्या क्या, मुझे वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम, अब तो क्लियर हो गई है। नोट्स अभी मैं आपको भेज दूंगी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। और इसके अलावा आपने और क्या पूछ लिया है? अच्छा, आप जीपीए पूछ रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है, इसे ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। ये 4 ज्यादातर होती है, उसमें से लोग जो है मैक्सिमम उसमें से कितना लेते हैं, 3.6 से लेकर 3.9 वगैरह तक अच्छी समझी जाती है। जीआर एंड सीआर कौन है? व्हाट इज जीआर एंड सीआर? नहीं, हु आर कहो। जीआर एंड सीआर जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव है आपके क्लास के, गर्ल एंड बॉय। विविड एंड वेग में फर्क होता है। विविड के स्पेलिंग VIVID होते हैं। विविड मीन क्लियर, वेग मीन अनक्लियर। 7 C's का रट्टा नहीं लगाना। 7 C's का जो टॉप पर मैंने आपको भेजूंगी ना, जो एक रोड मैप, याद रखना है कि आपको मिक्स ना कर लेना बस, बाकी आपको समझ के आना चाहिए। उसकी जो शुरू की पैराग्राफ होगा ना हर एक का, वो जरा ध्यान से अच्छी तरह पढ़ लेना। यूफेमिज्म मैंने आपको बताया है, पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, किसी को हर्ट नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ठीक है। किसी से कोई, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दे दी कि अनएम्प्लॉयड किसी को नहीं कहना, बिटवीन जॉब्स कह लेना। किसी को डाई नहीं कहना कि फला बंदा फौत हो गया है, डाइड, उसकी जगह समबडी पास्ट अवे। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे समझते हैं कि पढ़ाने का स्टाइल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जी जी, नोट्स आपको काफी हैं, बहुत हैं। जिसको तसल्ली नहीं आती वो किताब से पढ़ ले। बुक का नाम क्या है? अवैस पूछ रहे हैं। अवैस जरा CR से पूछिए, वो आपको बता देंगे। कॉनोटेशन का मतलब है फीलिंग्स आ जाना। एक लफ्ज सुनकर आपके दिमाग में क्या फीलिंग्स आती हैं, दैट इज कॉनोटेशन। जैसे एक मिसाल के तौर पर, और डेनोटेशन एक मैं मिसाल आपको देती हूँ। आपने बोला, फॉर इंस्टेंस हमने एक लफ्ज बोला विमेन। ठीक है। अब आप सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके दिमाग में विमेन से कोई एक औरत ज़हन में आ गई, किसी के दिमाग में उनकी मदर, किसी के आपकी दादी नानी, किसी के दिमाग में ऑफिस में बैंक में एक खातून ज़हन में आ गई। तो कहने का मतलब है कि वर्ड विमेन तो एक डेनोटेशन है, एक खातून, लेकिन कॉनोटेशन इसकी क्या है, आप उसका क्या मतलब लेते हैं। इसी तरह कोई भी लफ्ज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेस, नेगेटिव कॉनोटेशन आप लेते हो, लेकिन कुछ लोग स्ट्रेस को अच्छा समझते हैं। ठीक हो गया ना? तो ये आप कहते हैं कि हर वर्ड जो है उसके डिक्शनरी मीनिंग डेनोटेशन, उसके जो आप मीनिंग लेते हो उसको कॉनोटेशन कहते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट कौन लोग होते हैं? जो इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। दे आर इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरी इस वक्त कैफियत क्या है, दूसरे की क्या है, और वो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। अगर से किसी को गुस्सा आता है और आप भी गुस्से में जवाब देंगे तो क्या होगा, सोचे, थप्पड़ हो जाएंगे ना। तो बेहतर है कि आराम से, वक्त वक्त जो होता है ना वो बड़ा हीलर होता है, आप थोड़ा सा इंतजार किया करें।
मैंने यूफेमिज्म उस्मान गनी ने पूछा था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, पॉजिटिव वर्डिंग का इस्तेमाल करना। इसके बाद है वेग मीन नॉट क्लियर। जैसे मैं आपसे कहूं थोड़ा सा बड़ा कर दो, मिसाल के तौर पर आप आप एक लेटर लिख रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो तुमने तीन तीन पेजेस का लेटर ले आए। मैंने तुम्हें कहना था कि भाई थोड़ा सा लाइक 2 लाइनें और ऐड कर दो, तुम 3 ले आए हो। जो 3 मैंने जब थोड़ा बड़ा कहा, ये वेग है, ठीक है, मुझे स्पेसिफिक कहना चाहिए था। मोहम्मद अहमद आपको मैं देती हूँ, आप ग्रुप में ऐड अभी हो जाते हैं, नंबर देती हूँ आपको। बुक का ऑथर का मुझे नहीं पता, आप बुक स्टॉल से कॉल करके पता कर लें। बाजुकात पब्लिकेशन होती है, कभी ऑथर नहीं भी होता। सीआर कैसे बनेंगे मोहम्मद जुनेद रशीद? सीआर अब बन गया है ना, वो आपको गाइड तो कर रहा है, कोई अगर मसला है तो बताओ। अच्छा बच्चा इतना काम कर रहा है। बस मैंने रेंडमली पहला नाम जो मुझे नजर आया था मैंने उसको रख लिया, मुझे नहीं पता था, मैं तो जानती भी नहीं। अच्छा ठीक है। हर्टा मर्फी की कम्युनिकेशन की बुक है 7th एडिशन। आप एशना और इशना, ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं अगर जो भी हैं आप। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आपको नोट्स तो पहले पढ़ लें सारे, और साथ साथ एमसीक्यूज करते जाएं। लोग कहते हैं हम आपसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल, आप ग्रुप से आपके पास नंबर तो आ ही गया है। अच्छा जी, अब सारे लोगों के आई थिंक मैंने जवाब दे दिए हैं। अब आपको हमेशा की तरह जब मैं देती हूँ नंबर, तो मैं प्लीज आपको नंबर दे दूं, ताकि आप जो है एक मिनट जी, मुझे जाने दें वहां तक, इसे क्रॉस करती हूँ। मैं आपको शनावर का नंबर दे देती हूँ, और जो गर्ल्स हैं हमेशा की तरह वो क्या करती हैं, मुझे, आपके पास नंबर आ गया है, मैं भी शेयर करती हूँ, एक मिनट। ये लीजिए नंबर आ गया। बॉयज शनावर को प्लीज मैसेज कर दें, वो आपको ऐड कर ले ग्रुप में, और जो गर्ल्स हैं उनको मैं जीआर का नंबर भेज दूंगी, आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, आपके पास नंबर आ गया है। ठीक है जी, टाइम इज अप, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब मंडे को मिलेंगे, आपको थोड़ी देर में नोट्स मिलेंगे। अगली दफा नया टॉपिक है, जो मिस करेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने लेटर लिखने सीखने हैं, ठीक है। तो आपको मेरी कोशिश होगी, मैं इसलिए आपको जल्दी भी लेटर पे ले आई हूँ, ताकि मेरी तरफ से मुझे ये है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जितना आपको अच्छा करवा सकूं अपनी तरफ से मैं आपको दे दूं। बाद में अगर आपकी फिजिकल क्लासेस होती हैं तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारा वो टॉपिक होगा, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।